Who is going to? ये please start करें जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद जज़ाकल्लाह. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Chaudhry Usama Fazal and I am the convener of the Parliamentary Task Force on SDGs. I welcome you all on behalf of the SDGs Task Force, and I am very honored to have the whole PND's team here who will be giving us a proper briefing on what the Punjab and how the PND is doing the works in line with the SDGs indicators. So we have had a meeting before, but that was, I think that got carried away a bit. So now, as the whole 10 members team from PND is here, the members will be having a proper briefing by the department on SDGs and how the Punjab is taking it along. So we are very happy to have you, sir, and all of your team. We welcome you on behalf of the SDGs Task Force. I think we should start from the introduction first. So, madam, please, ji. Bismillahirrahmanirrahim. I am Ishrat Ashraf, MPA and caucus head also. Thank you. Very important. Woman caucus. Thank you. Assalamu alaikum. I am Zishan Anwar Awan, Chief Education PND Department. Assalamu alaikum. My name is Dr. Qasim Manzoor. I'm Assistant Chief in Planning and Development Board, and I'm posted in the Economist Wing. Assalamu alaikum. Uzma Hafiz, Senior Chief Health PND Board. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मसूद अनवर है. मैं चीफ इकोनॉमिस्ट हूँ पीएनडी में और मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ इस वक्त. शॉर्टली प्रॉब्ली चेयरमैन पीएनडी इफ इज फ्री फ्रॉम सीएम्स मीटिंग ही विल बी जॉइनिंग आल्सो सर. इम्तियाज़ अहमद, जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट पीएनडी बोर्ड. सर अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर अमानुल्लाह, हेडिंग पंजाब एसडीजीज यूनिट. जी अस्सलाम वालेकुम जी. आई एम नदीम खुर्शीद, अर्बन रेजिलियंस स्पेशलिस्ट एसडीजीज यूनिट यूएनडीपी. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. गुलाम अब्बास, चीफ कोऑर्डिनेशन पीएनडी बोर्ड. Assalamu alaikum. This is Rizwan Ali, Assistant Chief, Environment and Climate Change, PND Board. Assalamu alaikum ji. My name is Azad Nasir and I'm the content producer of Punjab Assembly. Assalamu alaikum ji. My name is Sultan Dawood and I'm an associate at the PDU. Assalamu alaikum. Muhammad Hassan, PDU. Assalamu alaikum. Asma Nasir Desai, Junior Consultant from PDU. My name is Anzila Waheed. I am Junior Consultant in PDU. Ji, Assalamu alaikum. I am Meera Kareem. I am Communications Expert, Punjab Assembly. Assalamu alaikum ji. I am Asfa Khan, Director PDU, Punjab Assembly. Assalamu alaikum. I am Isaac Shahzad and I am working as Assistant Director, Bureau of Statistics, Planning and Development Board. Thank you. Assalamu alaikum. Ataullah Awais. I am working as a Director in Parliamentary Development Unit. Assalamu alaikum ji. Ahmed Laghari, MPA PP291 DG Khan. Assalamu alaikum. Salma Saeed Hashmi, and also the convener for children with different abilities. Thank you. Ji, Assalamu alaikum. Uzma Kardar here, Chief Minister's focal person on polio and convener of Parliamentary Committee to combat human trafficking. Assalamu alaikum ji. Bagada Mushtaq. I am MPA from PP26, that is Tehsil Pind Dadar Khan ji. Assalamu alaikum ji. My name is Kriti Len. I am the Director SDGs in the Parliamentary Development Unit. So with your permission.
Yes, so now the introduction has been done, so please, I think. So first of all, let me thank you, sir, for being here, sir. आपने इनवाइट किया और हमारे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है, ऑनर है, और हम इसमें से कोशिश करेंगे कि आज आपको हम जो काम कर रहे हैं SDGs के ऊपर उसका एक अप्रेजल आपको दे दें, फिर उसके साथ साथ हम आपसे गाइडेंस भी सीख करेंगे सिंस इट्स द एपेक्स बॉडी. So whatever directions given, we'll try to implement those in the future also, sir. Bismillahirrahmanirrahim, Punjab's SDGs development and paradigm. आगे चलिएगा. सर मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसका सीक्वेंस ये होगा कि मैं पहले डेवलपमेंट एजेंडा 2023 SDGs का जो है उसको थोड़ा सा एक स्नैपशॉट दूंगा, फिर पंजाब का एक स्नैपशॉट होगा कि हम क्या करें. हमने एडवांस सर उसके बाद सर हमारी SDGs पे जो प्रोग्रेस है पंजाब की उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डायलेट करूँगा. देन कमिंग टू चीफ मिनिस्टर्स विजन, और फिर डेवलपमेंट एलोकेशन 2024-25, फिर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर स्टेटस, वे फॉरवर्ड फॉर SDGs, एंड लास्टली वी विल बी डिस्कसिंग द पॉइंट्स which need to be discussed here, sir. So next. सर अगर हम डेवलपमेंट एजेंडा 2023 देखें SDGs के हवाले से, तो इसके अंदर जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर पूरा SDGs हिंज कर रहा है वो है इंक्लूसिविटी, एक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी. हमने इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसीलिए कहा है कि इसके अंदर इंक्लूसिविटी हो और एक्विटी होनी चाहिए, एक्विटेबल होना चाहिए, नोबडी इज़ टू बी लेफ्ट आउट, एंड एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्विटेबल डेवलपमेंट. इसको सर अगर हम देखें ब्रॉडली तो इसके अंदर 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं और 247 इंडिकेटर्स हैं. बाय 2030 जो हमने इसका इंटरनेशनल कॉवेनेंट है जिसके हम सिग्नेटरी हैं उसके तहत हमने इसको 2030 तक अचीव करना. नेक्स्ट है ये सर हमारा SDGs का रिलेशन है विद द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. दोनों सर इसके अंदर जो कॉमनैलिटी हैं वो 5 पीस का एक कॉन्सेप्ट है, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप. ये SDGs में भी हैं और यही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में भी थे. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं थी जिसकी वजह से उसके टारगेट्स को अचीव नहीं किया जा सकता. देन देयर वाज अनदर एग्रीमेंट अमंगस्ट द नेशंस, उसके ऊपर फिर ये SDGs फ्रेम हुए जिसके अंदर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप. पीपल में अगर हम सब देखें तो हमने इसमें पावर्टी को ख़त्म करना है, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है, हमने हेल्थ, एजुकेशन को इंश्योर करना है, ख़ास तौर पे इंक्लूजन ऑफ द विमेन एंड चिल्ड्रन. प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट के अंदर हमने इसके इकोसिस्टम को मेंटेन करना है और बच्चे और सोसाइटी को ख़ास तौर पे फोकस करना है कि एक ऐसा इकोसिस्टम हो जिसके अंदर तमाम लोग सरवाइव कर सकें और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें. फिर प्रॉस्पेरिटी है, हमने इसकी ग्रोथ को एक ट्रिगर करना है जिसमें इंक्लूसिविटी और ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के साथ हमने जाना है. डाइवर्स इकोनॉमी डेवलप करनी है जो कि एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी सस्टेन कर सके. इसमें एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है अडेप्टिव सोशल प्रोटेक्शन का, वो भी इसका एक पार्ट है. फिर इसके बाद सर पीस है, एक इंटरनेशनल एजेंडा है जिसके तहत हमने सेफ, स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल सोसाइटीज़ और इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने हैं, प्रमोट करने हैं. फिर पार्टनरशिप है, कैटलाइजिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सर यहाँ से सर ऑनवर्ड्स में अब डॉक्टर अमान साहब हैं जो हमारे PD हैं इस पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रोजेक्ट को पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं. मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके ऊपर आपको इंडिकेटर्स की पूरी डिटेल्स बताएंगे, हर गोल, उसके नीचे जो इंडिकेटर्स, मेजर इंडिकेटर्स हैं और उसके अंदर हमारी जो आज तक की प्रोग्रेस है वो आपको बताएंगे. जी डॉक्टर अमान साहब. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. सर मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा पहले ब्रॉडर लेके चलूँगा. जो अभी रैंकिंग आई है 2024 में पाकिस्तान की,
सर एक तो नंबर 1 ये कि जो इंटरनेशनल हमारी SDG इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान जो तकरीबन 167 कंट्रीज़ में 137 नंबर पे, और आप इस पे तमाम जो हमारे गोल्स हैं, फॉर एग्जांपल नो पावर्टी, नो हंगर, उसके अलावा जो हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सैनिटेशन और जेंडर इक्वालिटी के हवाले से सर आप देख सकते हैं कि पावर्टी में तो वी आर इम्प्रूविंग मॉडरेटली। बाकी हम गोल नंबर 2, 3 में हम ओवरऑल सर दिस इज़ नेशनल सिनेरियो जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें स्टैग्नेट कर रहे हैं सर, रिग्रेस कर रहे हैं हम। गोल नंबर 4 विच इज़ क्वालिटी एजुकेशन, और गोल नंबर 5 सर जो हमारा है हेल्थ के हवाले से क्वालिटी हेल्थ, वो हमारा स्टैग्नेट है। इसी तरह जो हमारा वॉश सेक्टर है वो भी स्टैग्नेटिंग है। सर ये थोड़ी सी सिचुएशन है जो आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। कोई आप यहाँ देख रहे हैं कि जो नीचे आपको बॉटम पे नज़र आ रहे हैं स्टेटस ऑफ SDG टारगेट्स फॉर पाकिस्तान, सर इसमें तकरीबन 19.7 जो % है हमारे गोल्स दे आर ऑन ट्रैक या मॉडरेटली इंप्रूव कर रहे हैं, ओनली 19.7 नेशनल लेवल पे। बाकी स्टैग्नेट कर रहे हैं 42.3 और 38% डिक्रीज इन पे। दिस इज़ अ प्रीटी मच सिमिलर पिक्चर वी हैव फॉर द पंजाब सर। तो मैं सर आपको 1 by 1 लास्ट टाइम जो हम प्रेजेंट करना चाह रहे थे, बेसिकली हर गोल की हम आपको पिक्चर शेयर करेंगे जो कि आपको बताएगा कि बेसलाइन सर क्या थी 2013-14 में हमारा, या 15 का नंबर क्या था और रीसेंट वैल्यू क्या है। सर ये इस स्लाइड पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि पंजाब का स्नैपशॉट क्या है ओवरऑल, फिर हम नेक्स्ट में इसके बाद जो स्लाइड आएगी उस पर स्टार्ट करते हैं। सर ये कुछ की इंडिकेटर्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि पंजाब फॉर एग्जांपल अगर स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट हमारा जो 64.7% था बेस लाइन 2014 का फिगर, सर 2024 जो कि अभी हमारा रिसेंट मिक्स आया मल्टीपल इंडिकेटर्स क्लस्टर सर्वे, उसके मुताबिक 87 पे आ गए। सर अगर हम हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसमें इंप्रूवमेंट भी मैसिवली आ रही है और वी आर ऑन ट्रैक, और होपफुली बाय 2030 will be able to achieve 100% of the target. सर ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग में जो फंक्शनल न्यूमरेसी के हवाले से होती है उसमें बेसलाइन हमारी 37.3 थी, हमने मैसिव इंक्रीज़ किया। करंट वैल्यू जो हमारी मिक्स सर्विस है 67.5 है और 100% का टारगेट होपफुली हम अचीव कर पाएंगे 2030 तक। सर एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी वी हैव बीन इम्प्रूविंग, 95.4 था, अभी रिसेंट नंबर इज़ 97.3 एंड वी विल बी एबल टू अचीव 100% टारगेट इंशाल्लाह बाय 2030। जी मैडम इंशाल्लाह। उसके बाद चाइल्ड लेबर्स एक वो है जब गवर्नमेंट ने काम स्टार्ट किया था और बहुत सीरियसली इस पे काम हुआ था तकरीबन 2015-16 के बाद, आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेस लाइन थी इट वाज 16.4%, नाउ हमने इसको रिड्यूस करके 8.4% पे ले आए हैं। स्टंटिंग प्रेवलेंस भी सर रिड्यूस हो रही है। सोशल ट्रांसफ़र और जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है दिस हैज़ बिन इशू, अभी इस पे यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे सर इनिशिएटिव्स क्या हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट साहब भी सर इस पे आपको अप्राइज करेंगे। तो ये सर थोड़ा सा स्नैपशॉट है ओवरऑल हमारे पंजाब का। डेटा अवेलेबिलिटी के हवाले से सर हम बात करें तो 72% जो इंडिकेटर्स हैं उसका डाटा पंजाब में अवेलेबल है सब नेशनल लेवल का, और 28 का अवेलेबल नहीं है। ऑन ट्रैक, ऑफ ट्रैक और जो बाकी इंफॉर्मेशन है स्लो या स्टैग्नेंट सर वो प्रीटी मच सिमिलर पिक्चर है जो हमने अभी आपको पीछे पाकिस्तान की प्रेजेंट की थी। सर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड में यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको पता है डॉक्टर महबूब हक ने डेवलप किया था, फार्मूलेट किया था। उसके बाद तमाम इंटरनेशनल जो कंपैरिजन किया जाता है HDI का तमाम कंट्रीज़ का किया जाता है। जो UNDP पाकिस्तान है सर उन्होंने कंट्री रिपोर्ट निकाली थी 2020 में लास्ट टाइम, तो अभी उस पर नेक्स्ट रिपोर्ट पे काम हो रहा है। उसके मुताबिक सर पंजाब इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस एज पर HDI स्कोर इज़ कंसर्न। सर 0.762 हमारे स्कोर है। अगर देखा जाए तो ये जो अच्छी कंट्रीज़ हैं उनकी वैल्यू के करीब है हमारे स्कोर, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं 0.762। अगर पाकिस्तान का सर स्कोर देखा जाए अभी 20 बट दिस इज एज आई थिंक 2020 क्या है ना, अभी कोई करंट हमारे पास है इसका? अभी रिसेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च हुई है इंटरनेशनल, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग कोई ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर रही। वो सर तकरीबन हमारे 0.52 का नंबर है कुछ। तो सर बाकी इसका ये है कि डाटा हमारा PSLM और जो बाकी इंटरनेशनल सोर्सेज से डाटा है वो अभी आ नहीं रहा। जैसे ही वो डाटा आएगा सर इसके बाद है ना इस रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे 2025 में होपफुली। इंटरनेशनल डाटा हर साल आता है ना?
अच्छा, तो आप कोई कंपैरेटिव एनालिसिस उसका अगर करते हैं कि अभी 23 में इतना था, 24 में अब ये है, और आगे क्या आपके टारगेट्स हैं? ये मैडम इंटरनेशनल जो डाटा है HDI के, उसकी बेसिस पे हम डेफिनेटली कर सकते हैं, और जो SDG इंडेक्स की वेबसाइट है वहाँ ऑलरेडी ये चीज़ें कंपैरिजन दिया भी हुआ है। तो आप कहेंगे तो हम ये भी आपको पेश भी कर सकते हैं और प्रेजेंट भी कर सकते हैं। सर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आना चाहूँगा। यहाँ सर हम गोल नंबर 1 विच इज़ नो पॉवर्टी, सर अब इस पे हम फोकस होकर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे। सर एक तो ये कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, इसमें हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के तकरीबन 15 के करीब इंडिकेटर, जिसकी बेसिस पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सर 2014 के मुताबिक पंजाब में जो पॉवर्टी थी, हेड काउंट, दैट वाज 31.4%। सर अभी जो रिसेंटली हमारा मिक्स आया है उसके मुताबिक हमारी ड्रास्टिकली वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, पॉवर्टी पंजाब में कम हुई है और 20.1 पे हमारा नंबर आ गया। सर जो पिछली स्लाइड पे आपने बेसलाइन बताई थी हमें, वो भी 2014 की ही थी? हाँ जी, ये भी 2014 की, so 2014 is your baseline that you're using? Exactly. फॉर मोस्ट इंडिकेटर 2014 या फिर 2015, जो हमें 2016 से पहले का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट विल बी आवर बेसलाइन। अच्छा सर, यहाँ आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में ये राइट हैंड साइड पे सर हमने ये चार्ट बनाया है, बेसिकली जो हमारा पंजाब के अभी तो 41 हो गए, 36 डिस्ट्रिक्ट्स का। सर इसमें आप देख सकते हैं नॉर्थ इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग पार्ट। सर आप खुद साउथ से हैं, सर आपने देखा होगा कि ये जो साउथ के हमारे अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रेड जोन में आ रहे हैं, जहां आप पॉवर्टी देख सकते हैं कि वो तकरीबन मोर देन 40% है, 40%, 50%, 60%। राजनपुर स्टिल बॉटम ऑफ द लिस्ट है सर। तो सर ये वो हैं जहाँ के हमें थोड़ा सा, वो जो चीफ काउंसिल साहब इक्विटी की बात कर रहे थे, वहाँ गवर्नमेंट का फोकस भी है, हमने रिंग फेंसिंग भी की, हम 35% जो एलोकेशन करते हैं, आपको पता है ADP की साउथ पंजाब के लिए की हुई है। सर सोशल प्रोटेक्शन एक्सेस आप देख रहे हैं 42.8 से हम तकरीबन स्टैग्नेंट वैल्यू है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। सर इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमने अपना PSER लॉन्च किया है अभी, और ताकि पंजाब अपनी टारगेटेड इंटरवेंशंस लेके आ सके सोशल प्रोटेक्शन पे। सर इम्प्रूव वाटर सोर्स पे हम लोगों ने मैसिव इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। फिर टोटल स्पेंडिंग ऑन जो सर एसेंशियल सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ और सोशल प्रोटेक्शन, सर उसमें आप देख सकते हैं कि टोटल स्पेंडिंग का जो शेयर है तकरीबन 31% हम इन 3 सेक्टर्स को दे रहे हैं सर, विच इज़ ए गुड नंबर। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल मेंटेन कर रहे हैं कि 30% ऑफ द बजट इज़ मेंट फॉर द साउथ सर। तो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन सर, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन सर 36% है जो हमारी साउथ की है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन हम कुछ, क्योंकि इसमें सर 2 किस्म की स्कीमें होती हैं, जो कि रीजन स्पेसिफिक होती हैं और एक जिसका ओवरऑल पंजाब पे इम्पेक्ट होता है। तो हम जो लाहौर में भी होती हैं बाज़ स्कीमें, उसका ओवरऑल तो बेसिकली हेडक्वार्टर की वजह से वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, लेकिन अगर उसका स्पिल अवे आप इफेक्ट देखें तो वो बेसिकली वो पूरे पंजाब के लिए होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम 35% को एक रीजनल पैरिटी की बुनियाद पे मेंटेन करते हैं। अच्छा सर, ये सर ने जो बात की, यानी कि जो हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं साउथ पंजाब में, जब 36 थे तो उसमें 33% टोटल पॉपुलेशन, और हम उसको 35% हमने उसको रिंग फेंस किया हुआ है सर। सर अगर गोल नंबर 2 पे आ जाते हैं, सर गोल नंबर 2 पे आप देखेंगे कि स्टंटिंग हमारी इम्प्रूव कर रही है, 33.5 से हम 27.3 पे आ गए हैं। और फंड कम दिए, मतलब इसमें ये किस तरह? ये ना प्रोपोर्शन है, हमारा बजट इन्फ्लेट करता जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है, उसकी स्पेंडिंग बढ़ रही है नो डाउट, लेकिन जब आप उसको ओवरऑल पूरे बजट का प्रोपोर्शन लेते हैं तो वो आपको थोड़ा सा कम नज़र आता है, लेकिन स्पेंडिंग बढ़ रही है सर। अच्छा, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि बिकॉज सर आई वाज ऑफ द व्यू कि हमने लास्ट बजट में भी और इस बजट में भी एक अच्छा चंक पहले से ज़्यादा इंक्रीज करके एजुकेशन को दिया है। मेरे ख्याल में द पंजाब गवर्नमेंट इज़ कि नंबर 1 प्रायोरिटी इज़ नाउ एजुकेशन एंड देन हेल्थ, जो बेसिक इश्यूज जो ऐसे ही सर। अच्छा सर, आपकी इजाज़त से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो सर एक तो स्टंटिंग हमारी सूबे में इम्प्रूव हो रही है सर। तकरीबन 2015-16 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था और इससे हम रिजल्ट देख सकते हैं कि मैंने आगे किया हुआ है ये। अच्छा अब चल रहा है। स्टंटिंग सर 33.5 बेस लाइन थी, 27.3 पे आ गई है। वेस्टिंग सर जो हमारी प्रेवलेंस है वो भी बहुत कम हुई है, 17.5 से 10.2 पे आ गई है सर। सर ओवरवेट जो प्रेवलेंस है वो दैट इज़ बेसिकली जो हमारा ओबेसिटी है वो इंक्रीज़ किया, 0.8 से 1.9 पे आ गई है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो हम अपने बच्चों को जंक फूड और फास्ट फूड। अच्छा, आई वांटेड टू आस्क यू, स्टंटेड ग्रोथ की जब बात करते हैं तो नॉर्मली द फिगर कोटेड इज़ 40 to 45%. Now that is all over Pakistan. अगर पंजाब में बेहतर हो रहा है तो क्या बाकी सूबों में बेहतरी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? मैडम एक तो ये कि पंजाब वो सूबा है जिसके पास लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है और बाकी सूबों के हालात इतने अच्छे नहीं है। अगर आप स्टंटिंग और वेस्टिंग की बात करें, उनके पुराने नंबर अवेलेबल होंगे पर अभी रीसेंट का कोई नंबर अवेलेबल नहीं है जिस पे हम कंपैरिजन कर सकें एज ऑफ 2024 या 2025 मैडम। तो फिर अब ये है कि हमारी जब एक होलिस्टिकली जब वो देखते हैं किसी भी SDG में इम्प्रूवमेंट, तो वो तो फिर ओवरऑल पाकिस्तान को ही देखेंगे ना। जी मैडम। तो पंजाब ने तो इम्प्रूवमेंट की है और अगर बाकी तरफ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो वो फिगर तो वहीं का वहीं रहेगा। ऐसे ही मैडम, ऐसे ही। हाँ ऐसे ही सर। सर इसकी डेफिनेशन के बताइए, देखें सर पंजाब इज़ द फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान। हमारे 75 to 80% जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, पंजाब प्रोड्यूस करते हैं और बाकी सूबों को जाती है। सर अब इस पे जो स्पेसिफिकली सर साउथ पंजाब पे आप करना चाहेंगे? आप जरा इसको ना बता दीजिएगा कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। ये जो आपने डाटा डिस्ट्रिक्ट वाइज है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँ इसमें जी प्लीज। इसकी जो मेजरमेंट मेथडोलॉजी है ना फूड सिक्योरिटी की, वो सिर्फ फूड अवेलेबिलिटी नहीं है, फूड एक्सेस भी है। उसको भी बहुत वेटेज दिया है कि लोग अफोर्ड भी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जब उसको वेट ज़्यादा जाता है तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी लोगों की कम होने की वजह से फूड के जो नंबर है ना ज़्यादा पुअर आए हैं। ये नंबर तो ठीक है, लेकिन ये एक्सेस की बात हो रही है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं है वो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को उसकी पूरी कर सके। बिल्कुल। एक अप टू ए मैक्सिमम न्यूट्रिशन लेवल हम उसको मेजर करते हैं। आप फूड सिक्योरिटी की उतनी डेफिनेशन निकाल लें सर को बता। So basically ये I've understood what you're saying. So this is basically agriculture growing district where there is food insecurity, because people don't have access to vegetables and wheat and rice and everything, while there is an agriculture growing district. और सर इसमें जो मेथडोलॉजी यूज़ हो रही है वो FAO की है, जो कि बेसिकली वो 8 क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप पिछले 1 साल के दौरान आपको कोई ऐसा टाइम आया जब आपके पास वाफर मकदार में फूड नहीं था, खुराक नहीं अवेलेबल थी, या कोई किसी मतलब काल की कहत की वजह से या सैलाब ज़दगान एरिया में किसी भी वक्त। तो ये बेसिकली वो पिक्चर है कि किसी भी वक्त पूरे साल में, तो एक तो डोमेन बड़ी है और वो ऑलमोस्ट किसी जब आप फैमिली से पूछते हैं, स्पेशली जब इन एरियाज़ में जाते हैं, तो ऑलमोस्ट ये हाउस होल्ड पे क्वेश्चन था, ये पर्सन पे नहीं था। पहली तो बात है, तो ये घराने हैं जिनके पास फूड इनसिक्योरिटी जिन्होंने फेस की है किसी न किसी स्टाइल। और सर ये साउथ पंजाब वो इलाका है जहाँ है ना तकरीबन पंजाब के जो 36 डिस्ट्रिक्ट का जब हम पावर्टी निकालते हैं तो 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट्स आर बिलो द पावर्टी लाइन, यानी कि बॉटम पे। 36 में 11 आर एट द बॉटम। तो सर ये फ्लड हिट एरियाज हैं सारे के सारे। एग्जैक्टली जी सर, क्योंकि अभी रीसेंट डाटा है और ये आपको पता है 2022 के बाद ये सारे सर्वे वगैरह किया गया सर। अच्छा सर, इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन वुमेन एज 15 to 49।
बाय प्रेगनेंसी स्टेटस सर ये भी आप देख सकते हैं कि 48.6 से 41.3 पे आ गया और प्रेग्नेंट वुमेन का सर 50% 36.1 पे आ गया. नंबर्स आर इम्प्रूविंग. इसके ऊपर सर मैं एक पॉइंट यहाँ पे रेज़ करना चाहूँगा. आप सारे लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं सर. हमारी अर्ली मैरिज भी सर इसमें एक फैक्टर है जिसको ऊपर हमें अब सोचना चाहिए, जो कि इसको बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकती है अगर हम उसके ऊपर लेजिस्लेशन करें. ये अब आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मैटर को रेज़ किया है. पर्सनली आई हैव बीन कैरिंग दिस बिल विद मी फॉर द पास्ट 6 years, but it gets scuttled and goes to the back burner because पिछले टेन्योर में भी कोई प्रेशर आते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, कोई कंट्रोवर्सीज आती हैं और वो दे कांट गो अहेड विद इट. इस दफ़ा द गवर्नमेंट ओन्ड दिस बिल. हम लोगों ने प्राइवेट मेंबर्स ने अपने गवर्नमेंट को दे दिए बिल्स. एक स्पेशल कमेटी बनी और वो फिर कैबिनेट के पास गई. कैबिनेट में एक कमेटी बनी, उन्होंने भी अप्रूव किया, बट somehow again it did not see the light of the day. But on Friday, this last Friday, in the National Assembly, it has been passed. So I think Senate में भी pass हो गया. So I think we should now put all our pressure to get it done in Punjab. अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी पाकिस्तान में तो ये हम अचीव नहीं कर सकते. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे बच्चियों की ख़ास तौर पे ये जो ज़चगी में जो फौत होते हैं और ये सारी जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, they are directly linked to this. थोड़ा सा अगर आप हल्का सा एजुकेट कर दें, मेरी रीडिंग ये है कि जो हमारे यहाँ पैदाइश में सिजेरियन केसेस हैं, दे आर काजिंग हैवक टू द लेडीज़. मेरा 3 मुल्कों का तजर्बा है, अपना भी और फैमिली मेम्बर का भी. अपना भी है, यूके का है, यूएसए का है, कनाडा का है. ये वहाँ पे लास्ट मोमेंट तक वो बर्थ जो है वो नेचुरल करने की कोशिश करते हैं. हमारे यहाँ ऐसे डॉक्टर और ऐसा सिस्टम पूरा मौजूद है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, जिनका सिर्फ एक काम है कि हर केस सिजेरियन ही करना है, विच इज़ काजिंग हैवक वन टू दी पुअर फैमिलीज. उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है बहुत ज़्यादा और क्रिएटिंग लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़ फॉर दी एंटायर फैमिली सब्सिक्वेंटली, स्पेशली फॉर लेडीज़. आप जब ये हेल्थ का ये सारा डेटा दे रहे हैं, जो भी इसमें आप समरी पेश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है. आपके पास कोई डेटा है पूरे पंजाब लेवल के ऊपर? एंड आई हैव आस्क्ड एक्चुअली अ क्वेश्चन आल्सो टेबल्ड इन दी असेंबली कि कितने जो बर्थ रेट क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हम कहाँ पे पहुँचे हुए हैं, डेटा क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और इसकी तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है, क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस सोशल कंसर्न है. सर आपकी बात बिल्कुल बजाय, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ. हम इस वक्त आज आपको डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डेटा नहीं शेयर कर सकेंगे. एक सेकंड मीटिंग में जैसे जैसे आप रिक्वायर करेंगे हम आपको डिपार्टमेंट स्पेसिफिक भी देंगे. लेकिन मैं इसमें सर एक चीज़ ऐड करूँगा कि इस करंट गवर्नमेंट के अंदर जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसके अंदर ये इनिशिएटिव भी शामिल है. आप सर देखें कि इसमें 2 चीज़ें हैं जो इसको एड्रेस कर रही हैं. वन, आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स के ऊपर सर 24/7 ये बर्थ अटेंडेंट्स की फैसिलिटी अवेलेबल की जा रही है. पहले कभी भी नहीं ऐसा था कि 24/7 आपको फीमेल अटेंडेंट मिल जाएं जो कि ये बर्थ्स को मैनेज कर सकें. उसके साथ साथ जो फैमिलीज़ आती हैं उनको स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, सो एज़ टू इनकरेज देम कि आप आएँ और जो हमारे ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स हैं उनके ज़रिए आप डिलीवरीज़ करवाएं. ये नॉर्मल डिलीवरीज हैं सर, ये सिजेरियन नहीं है. उसके अंदर बाकायदा एक स्टाइपेंड दिया जाता है और फिर उनका रेगुलर एक फॉलोअप उनका होता है डॉक्टर्स के साथ. ये सर इतना बड़ा इनिशिएटिव है, इसका मैं सर फिगर इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं टोटल नंबर ऑफ बेसिक हेल्थ यूनिट्स यहाँ पे ये 24/7 अवेलेबल है और नंबर ऑफ फीमेल्स हु हैव अवेल्ड दिस फैसिलिटी सो फार, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा. नहीं सर, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, सर प्रेग्नेंट वुमेन को सर दिया जाता है. सर मैं थोड़ा सा मैडम आप बताएं. जी सर, ऐसे ही है सर. और सर इसमें हमारे डोनर्स भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक का भी हमारा इसमें चल रहा है प्रोजेक्ट, वो भी इसमें चिप इन कर
कंपनसेशन जी सर, और वो उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, उसके टिल कंसेप्शन टू उसकी डिलीवरी तक सर, उसके जितने विजिट्स होंगे एंटी नेटल पोस्ट नेटल केयर्स सर, वो भी उसमें शामिल है सारे। मैडम इसमें ये बताइएगा ये किस बेसिस पे क्वालिफाई करते हैं आप उनको? Yes, I've come across many women who are availing this facility. हाँ. नहीं, this is actually happening on ground. Yes. No, नहीं लेकिन ये पूरे पंजाब के लिए पंजाब के लिए है, लेकिन ये होता है कि जैसे कि कोई पॉलिसी या कोई लॉ बनता है तो हमारे यहाँ यूजुअली इम्प्लीमेंटेशन में आके प्रॉब्लम आ जाती है। ये सेम प्रॉब्लम इसके अंदर भी किसी किसी जगह पर आ रही है, लेकिन ये पॉलिसी मौजूद है और इम्प्लीमेंट भी हो रही है। ये मेरे ख्याल में इट इज़ ऑल लिंक टू आवर नेशनल आईडी कार्ड नाउ। यस, आप उसमें वो आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड की है, आप सिर्फ वो दिखाते हैं एंड देन यू आर गिवन ऑल द ट्रीटमेंट और जो भी आपको प्रेगनेंसी में चाहिए होती है हेल्प, वो उसके थ्रू आपको मिलती है। No sir, no मैम, ये हेल्थ कार्ड दैट इज द डिफरेंट, हेल्थ कार्ड इज द डिफरेंट। अब जो बीमार हॉस्पिटल में दाखिल होता है जी उसका बन जाता है फौरन। अब वो जो आप बात कर रहे हैं वो खत्म हो चुका है। यस, आप ठीक कह रही हैं। हॉस्पिटलाइज होगा, जो एडमिट होगा, किसी की सर्जरी होगी, उसको हेल्थ कार्ड सिर्फ उस हद तक है, उसको दवाई मिलेगी। दूसरा जो हो रहा है उसको हम लोग देंगे। मैं आपसे जो लेकिन ये स्पेसिफिकली जिसके लिए बात हो रही है ना, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, वो अगर बेसिक हेल्थ यूनिट के ऊपर आती हैं तो उसको ये स्टाइपेंड भी मिलता है और उसकी जितनी भी जो एक्सपेंस है या मेडिसिन वगैरह हैं वो सारी उसको प्रोवाइड की जाती है। अगर कहीं उसका मतलब अगर सिजेरियन ज़रूरी है करना, क्योंकि सम केसेस में ज़रूरी भी हो जाता है। मैं माजरत के साथ कहूँगा, आप ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे मैं इंशाल्लाह डिस्कशन करूँगा ऑन द फ्लोर एंड आई होप यू विल गिव मी द वेरी एक्सपेंडेड आंसर। आप डेटा जब देखेंगे इट विल बी रिवीलिंग फॉर यू। पहले तो इट इज़ गोइंग टू बी अ नाइटमेयर फॉर यू टू कलेक्ट द डेटा जो सिजेरियन हो रहे हैं। मैं ऐसे डॉक्टर्स को, लेडीज़ को जानता हूँ जिन्होंने 95% केसेस सिजेरियन कर रहे हैं और वो उस टाइम पे आपके गर्दन पे छुरी रखते हैं जिस वक्त आप कहते हैं कि जी बच्चा बचाना है, माँ बचानी है, क्या करना है। जी, प्राइवेट सेक्टर में एक केस नहीं है मैम, प्लीज़ मैं इसलिए इस पे थोड़ा सा मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, प्राइवेट सेक्टर में ये हो रहा है। और आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, नॉट माई कोई पर्सनल रीज़न नहीं है, आप नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ये कम से कम जो सोशल सेक्टर्स हैं आप उसके अंदर अपोजिशन वालों को थोड़ा सा लूप में ले लें। मैंने कोई सारी लेडीज़ को मेरे घर की नहीं होनी है, जिधर भी जब भी जाते हैं वो आप जो है वो जी, चूँकि आप अपोजिशन के लिहाजा यू कैन नॉट इंटरवीन। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डिस्कशन में जाना चाह रहा था, इसलिए आप मेरी थोड़ी सी मान लेना। हो रहा है ना? नहीं, इसमें ये आप ना कहें ना कि अपोजिशन के साथ हो रहा है। श्योर जी। मैडम ये जो आपने अभी बताई है ना बात, हाँ जी, नहीं हो रहा है। नॉट अ सिंगल पेशेंट सिवाय जो ये पीएनडी वालों ने ये बता तो हमें दिया है, लेकिन अब ये आप पे है। क्वेश्चंस आ जाएं। वैसे बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड का ये टॉपिक नहीं है वैसे। जी सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, मैं थोड़ा सा अगर इजाज़त दें तो सर, एक तो नेक्स्ट पे अगर सर हम आते हैं तो ये गुड हेल्थ एंड वेलबींग के इंडिकेटर्स हैं सर। एक तो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट का हमने आपको बता दिया सर, मैसिव इंप्रूवमेंट हुई है सर। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर था पाकिस्तान में जो कि इम्प्रूव नहीं हो रहा था बहुत अरसे से, विच इज़ अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट, लाइव बर्थ पर 100,000 चिल्ड्रन। सर बेस लाइन जो थी 2014 की इट वाज 93 सर। अभी जो रिसेंट वैल्यू हमारे पास आई है 2024 की एज पर आवर मिक्स सर, दिस इज़ 55 सर। ये एक बहुत बड़ी यानी एक पॉजिटिव नंबर है जो कि हमारा ड्रास्टिकली डिक्रीज़ किया है सर। उसके बाद सर हम आते हैं फैमिली प्लानिंग सेटिस्फाइड विद मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन। ये
फिगर मेरा ख्याल है लाहौर को एप्लीकेबल है। आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। बिल अगर ये फिगर पे अगर हमने जाना है और आपने ब्रीफिंग देनी है, यू थिंक हम गोइंग टू, ठीक है आप ब्रीफिंग दे लेंगे हम। सर आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। सर सवाल ही नहीं पैदा होता, इट हैज नो रेलेवेंस टू दी रूरल एरिया। डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर रहे हैं आप, ऐसी ब्रीफिंग दे रहे हैं जैसे हम कोई आए हैं नॉर्वे से आए हैं। हम 24 सर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज 5 यूनिट आपको अपने घर के नज़दीक गिन सकता हूँ। इनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा सर? मैं अगर ये ब्रीफिंग है मेरे साथ सेक्रेटरी साहब चले, जब भी चले मैं 5 हॉस्पिटल। सर जेलम अगर ये चीज़ हो जो सज़ा आप तजवीज़ करेंगे मैं करने को, हमारी तो वहाँ पे लेडीज़ पीटी सर उन्होंने तो कहना ही अब छोड़ दिया है मैं, और आप यहाँ पे हमें 87% बता रहे हैं। सर आपका डिस्ट्रिक्ट जो जेलम 95.5 पे। मेरा डिस्ट्रिक्ट जेलम तहसील पिंड दादल खान है, और वहाँ पे तो आपने जो पानी का पीने का कहा है, आई विश आई कुड टेल यू, मैं तो जान के इंटरवीन नहीं किया वहाँ पे। ये मुझे नहीं पता आप फिगर कहाँ से लेके आप आ रहे हैं। रोज़ 25 तो FIR दर्ज हो रही हैं हर हल्के में वहाँ पे गाँव। इस वक्त गर्मियाँ शुरू नहीं हुई हैं। ये ऑनेस्ट टू गॉड मैं सम टाइम ये देखता हूँ तो ये बिल्कुल एक ब्रीफिंग होती है यहाँ पे, वो ऑल टुगेदर इट हैज़ नो रेलेवेंस टू द ग्राउंड रियलिटीज। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जहाँ पे अच्छी बात होगी, आई स्वेयर आई विल बी द फर्स्ट वन टू अप्रिशिएट होल हार्टेडली एंड आई विल एक्सेप्ट इट। ये नहीं है रेलेवेंट सर ये जो बर्थ अटेंडेंट्स वाली है ना, इसके अंदर आपको हर किस्म के बर्थ अटेंडेंट्स जो कि स्किल्ड हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे वो सर मेरी गुजारिश EDO हेल्थ से CO हेल्थ से हुई है। सर ये जो डाटा है ये दिस इज कंबाइंड पब्लिक एंड प्राइवेट। जी सर, ये सर हाउस होल्ड सर्वे पे होता है। सर मेरी CO हेल्थ से लाइन पे लें, अभी आप DDO हेल्थ को लें, डेप्टी को मोहम्मद अली को लें, आप आसिफ को लें जो MS है चेयरमैन साहब आपकी इजाजत से व्हाट वी कैन डू इज इंजेक्शन लगाने जा रहा, आप कह रहे हैं हम अटेंडेंस दे रहे हैं, पता नहीं हम सुन के कैसे नोट कर लें, विल डिस्कस इट विद द चेयरमैन BNP हिमसेल्फ कि भी वो दे हैव सम इश्यूज ना, तो आप नॉट एक्सेप्टेबल सर। इट विल बी मोर रेलेवेंट इफ वी टेक इट अप विद द रेलेवेंट एग्जैक्टली। ब्रिगेड साहब इनसे प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, देन वी विल गिव आवर ओन फीडबैक टू द जाके उन्होंने CM ऑफिस में कहना है जी आज बिल्कुल हमने क्या लफ्ज़ सर आपकी जो रिजर्वेशन है आप चेयरमैन साहब को देंगे ना जी? मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैंने इंजेक्शन एक बंदे को लगवाने के लिए मिन्नत की कि यार उस बंदे को कहो इंजेक्शन लगा दे, उसने कहा आप 2:15 बजे आए हैं। ये कह रहे हैं 24/7 जो है वो कई BHUs 24/7 होते हैं। ये कह रहे हैं कि इम्प्रूव हुआ है, मतलब हाँ बेटर ये स्टेटमेंट है। अच्छा चलो आप चलें, मैं नहीं करता हूँ। नहीं तो आप सही कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि वी कैन टेक दिस मतलब लेटर विद द डिपार्टमेंट। आई एम विद यू ऑन दिस। मैं खुद भी साउथ पंजाब से, मुझे पता है, मतलब मैं आई एम विद यू ऑन दिस। लेकिन ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि जो बेस लाइन थी उससे बेस लाइन का डेटा उनके पास 2014 को बेस लाइन बनाया हुआ। हाँ उसको 14 को बेस लाइन बनाया हुआ, तो उससे वो कह रहे हैं कि अब देखिए ना 10वां साल या 15 सर मैं रियल क्वांटिटी में तो अभी तक गई नहीं हूँ। वो जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल 2014 में जो आपका एक्सचेंज रेट था, आप जो 18.7 या 18.2 ट्रिलियन का पिछला बजट था उसकी रियल वर्थ क्या थी, और आज आप 17.2 नेशनल पे जा रहे हैं, इसकी वर्थ क्या है? आर बी मूविंग अपवर्ड? हमारी तो इकोनॉमी स्क्वीज हो रही है। ये पतली फिगर कहाँ से आ जाते हैं? इतना थोड़ा बहुत हमें भी समझ आए। यस लगारी साहब हेल्थ पे लगारी साहब ब्रिगेडियर साहब सर मैं इधर बैठा हाँ, मैं गुजारिश करना चाहवागा ब्रिगेडियर साहब ने जो नुकता उठाया ना, तुसी उनदे ते जरा गौर करो। ਅਸੀਂ टाइम काफ़ी ज़्यादा इस बहस ज़ाया करी जा रहे, वो इन्हों के स्टैटिस्टिक्स ਨੂੰ चैलेंज कर रहे हैं। ये अपने स्टैटिस्टिक्स वेरीफाई कर लें। हाँ जी बस ये स्टैटिस्टिक आर नॉट स्प्रेड ओवर द एंटायर कंट्री, बिकॉज मैं पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ और दूसरा सर मुश्ताक साहब ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਰੇ। ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ 64% ਤੋਂ 87% ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, यानी असल चीज़ तो वो है। तो डेटा कलेक्ट होता है, इसका पूरा एक क्वेश्चनर डेवलप होता है यूनिसेफ के साथ मिलके, और एक पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे के ऊपर किया जाता है। तो ये मिक्स का जो हमारा सर्विस, ये बताइएगा आप पूरी ये सर सैम्पल बेस्ड होता है, तो ये उसी तरह फिर रिफ्लेक्ट करता है परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन को। तो ये 100% पे नहीं होता कभी भी सर्वे, तो ये सैम्पल बेस्ड है। बेसिकली
हमारा जो मेन कंसर्न या मेंबर्स का जो मेन कंसर्न है, जो ब्रिगेडियर साहब ने भी राइटली पॉइंटेड आउट, जो आपने डाटा हमें प्रोवाइड किया, हमें थोड़े रिजर्वेशंस हैं उस डाटा पे, बिकॉज हम सारे आपको पता है ग्राउंड पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, रोज़ का थाउजेंड्स ऑफ लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, और ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमने तो इस दफ़ा एजुकेशन पे अच्छा खासा वी आर गोइंग टू स्पेंड, पहले पिछले साल भी अच्छा खासा हमने बजट में चंक रखा, अभी भी। तो वो एक जो रियल टाइम डाटा हमें शायद लग रहा है कि ये वो नहीं है जो हम देखते हैं अपने हलकों में या अपने डिस्ट्रिक्ट्स में या इस तरह। तो वो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर जब हम नेक्स्ट मिलेंगे और फिर जब डिपार्टमेंटल ब्रीफिंग होगी तो उसमें हमारे जो मेन कंसर्न्स है वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मेंबर्स उसमें वो हो जाए। प्लीज़ कंटिन्यू सर। सर मेरी इसमें यही सबमिशन होगी कि हम जब डिपार्टमेंट पे आएंगे ना, तो फिर डिपार्टमेंट आके ये सारे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड। जी सर, बिल्कुल ठीक है। जी डिपार्टमेंट ब्रीफिंग में मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ उसको इंटायर पंजाब लेवल पे स्पैन न कीजिएगा, उसको थोड़ा सा जो हमें समझ भी आ जाए, इनको डेरा गाजी की समझ आ जाए, मुझे पिंडी डिवीजन या जैनब समझ आ जाए, कुछ उसको इस तरीके से उसको ग्रेड कीजिएगा। क्योंकि हमारा SDGs का एक जो मेजर फिनोमेन जो उसके अंदर रिक्वायरमेंट है वो रीजनल इक्वलाइजेशन भी है, तो हम उसको इंशाल्लाह एडहियर करेंगे। सर, और अगर आपके जो हाउस होल्ड से सर्वे आप करते हैं, आपका जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसका भी उसकी कॉपी आप भेज दें ताकि हमें एक बेहतर आइडिया हो जाए कि क्या सवालात आप लोग पूछते हैं जिनकी बेसिस पे डेटा कलेक्ट होता है। थैंक यू। सर इसके बाद हमारे जो एडोलेसेंट बर्थ रेट है, एज 10 to 14 years per 1000 women in that age group, सर वो भी डिक्रीज़ कर रहा है कि 10 से 14 साल की बच्चियों का जो सर वो है उसमें जो बर्थ रेट का वो रेशो है 40 से सर 33 पे आ गया, विच इज़ इम्प्रूविंग। सर नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं क्वालिटी एजुकेशन, आपने सर एजुकेशन के हवाले से काफ़ी बात की। सर एजुकेशन के इंडिकेटर्स पे देखेंगे चिल्ड्रन विद फाउंडेशनल रीडिंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स, बच्चियों का अगर बुरा ना मनाए ज़रा पिछली स्लाइड पे जाइएगा। ये जो 3rd और 4th है आपका पॉइंट, इसको ज़रा प्लीज़ ब्रीफ कीजिएगा। ये मुझे समझ नहीं आई, ये जो आपने लिखे हुए हैं ना, फैमिली प्लानिंग सेटिस्फाइड विद मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन, और चौथा जो एडोलेसेंट बर्थ रेट per 1000 women in that age, ये ज़रा सर ये जो मैं पहले लास्ट वाला आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर जो 10 से 14 साल की उम्र की बच्चियों की जो अर्ली मैरिजेज हो जाती हैं, जो इसको हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं सर, उसमें सर तो 1000 में से जो बच्चियाँ अगर शादीशुदा जो यानी उस एज ग्रुप की शादी होती है तो उसमें सर जो बर्थ थी 40 बच्चे यानी बच्चियाँ यानी बेबी बॉर्न कर रहे थे, तो अब वो रेशियो सर डिक्लाइन करके 33 पे आ गई है। एम आई राइट आइज़ैक? ये इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? सर चाइल्ड मैरिज को हम डिस्करेज करते हैं एज पर पाकिस्तान लॉ, तो सर ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसको मजीद डिक्लाइन होना चाहिए, बट ड्यू टू यू नो सदर्न रीजन में जो ये तो आप बात कर रहे हैं बर्थ रेट की, जी सर, मैरिज रेट की बात नहीं कर रहे, जो मुझे समझ आई आपकी बात से। बर्थ रेट अगर डिक्लाइन कर रहा है तो वो तो अच्छी बात नहीं है। मैं इसको जी आप बताएं। आइज़ैक आप सर बेसिकली इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो चाइल्ड मैरिजेस भी वो डिक्लाइन हुई हैं और पंजाब में ओवरऑल अर्ली मैरिजेस जो हैं जी, अर्ली मैरिजेस भी डिक्लाइन हुई हैं, और साथ ही साथ ये बेसिकली वो रेट है। नहीं देखें, मैरिज रेट में डिक्लाइन होना एक अलग बात है, बर्थ रेट में डिक्लाइन होना एक दूसरी बात है। ये अगर बर्थ रेट डिक्लाइन इस वजह से हो रहा है कि मैरिज रेट डिक्लाइन किया, अगर ये आप इसको कोरिलेट कर रहे हैं तो फिर आप सेपरेट हमें एक स्लाइड में बताइए कि ये इसलिए डिक्लाइन आ रहा है कि मैरिज रेट में डिक्लाइन आ रहा है। यहाँ से तो मुझे ये लग रहा है कि कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बर्थ रेट डिक्लाइन कर रहा है। सर इसका बेसिकली इंडिकेटर ही यही है, तो इसलिए हमने इंडिकेटर फोकस किया है, लेकिन आप सही कह रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अगर हम अर्ली मैरिजेस को डिस्करेज करेंगे तो जाहिर है जब वो मैरिज नहीं होगी तो फिर अर्ली बर्थ भी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है आपको ये इंडिकेटर फिर चेंज करना चाहिए ना, ये तो बर्थ रेट की बजाय ये मैरिज रेट में डिक्लाइन होने की वजह से ये वैल्यू चेंज हो रही है। इंटरनेशनल ऐसे है, हम इसको खुद से रिफ्रेज नहीं कर सकते। सर ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर है और सेट डिफाइंड इसकी डेफिनेशंस हैं। हाँ हाँ जी।
in that age group. इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ये जो 68 सर ये हमारा इसमें हम पुअर हैं इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी फैमिली प्लानिंग की सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्लाइन है, पहले ज़्यादा था अब ये कम हो गया। सर आपके नॉलेज में होगा कि हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ था 2017 में 2.13 था पंजाब का, नाउ इट इज़ 2.57। अच्छा सर नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वालिटी एजुकेशन की तरफ। सर ये जो SDGs के इंडिकेटर्स हैं एज़ पर देयर डेफिनेशन, ये सर हमने इंडिकेटर यहाँ दिए हुए हैं बेसिकली। तो 4.1.1 है चिल्ड्रन विद फाउंडेशनल रीडिंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स। सर बच्चियों की जो बेस लाइन थी दैट वाज 19.9 और जो बच्चों की थी दैट वाज 20। तो उसमें हम देखें तो रीसेंट वैल्यू 23.4 है गर्ल्स का, और जो बॉयज़ का है थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है 20 से 20.8 पे आया है, विच इज़ नॉट यू नो गुड नंबर जो हम देख सकते हैं। सर आपको पता है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है दिस इज़ द एरिया जहाँ हमें फोकस करने की ज़रूरत है, इंस्टेड हम क्वांटिटी पे फोकस। ये कौन सी क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं आप? इसकी डेफिनेशन क्या इंडिकेटर? सर इसका एज ग्रुप 7 से 14 साल तक के बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता था और उनसे एक छोटा सा टेस्ट भी लिया जाता था। क्या क्वेश्चन पूछते हैं आप? एक बुकलेट था उसमें बेसिकली उसमें न्यूमरेसी स्किल्स और रीडिंग स्किल टेस्ट की जाती थी, बच्चे से उर्दू और इंग्लिश में रीडिंग करवाई जाती थी और असेसमेंट होती थी क्या वो अगर बच्चा स्कूल तो जा रहा है दूसरी तीसरी में। ये बेसलाइन और रीसेंट वैल्यू में ये 10 साल का डिफरेंस है, और 10 साल में भी वही है काम। ये तो 10 साल का तो मुझे तो समझ नहीं आती कि वो वेरी लॉन्ग पीरियड, इसमें आप क्या कंपैरिजन किसी का कर सकते हैं? आई मीन दिस इज नॉट इवन, ये दिस इज नॉट रैशनल। मुझे तो वो तो ओवर द टाइम ये करते रहते होंगे, लेकिन अभी हमें प्रेजेंट करने के लिए तो उन्होंने 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया ना, बेस लाइन एंड द रीसेंट वैल्यू। उसमें भी मैडम अगर हम देखें इवन देन ये बॉयज तो वहीं पे खड़े हैं, ये तो उन्होंने मेरे ख्याल में खैर चले ये दिस इज। सर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि 10 to 15 ईयर हिट करने के लिए सोशल इंडिकेटर को एक बहुत बड़ा टाइम होता है, यानी कि इसमें मैसिव इंप्रूवमेंट आती है। अगर आप बाहर की दुनिया में देखें हम लोगों का लिटरेसी भी इज़ प्रीटी मच स्टैग्नेंट, हमारे तमाम सोशल सेक्टर के इंडिकेटर मोस्टली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। सर मैंने आपको जो स्टार्ट में बताया, सर आप अगर कुछ आई थिंक ये जो आप बात कर रहे हैं ना बॉयज़ वाली, बॉयज़ की रेशियो पहले भी अच्छी थी अब भी अच्छी है। अब उनकी कभी भी ख़राब नहीं हुई रेशियो लड़कियों की ख़राब थी ज़्यादा, उनको बच्चियों को स्कूल नहीं ज़्यादा। तो अब ये बहुत बेहतर हुई है, ये बहुत बेहतर हुई है। लेकिन जो सेकेंडरी लेवल है, देखें सेकेंडरी लेवल पे जो आपने ये लिखा हुआ है 38 अपर सेकेंडरी स्कूल 38 से 48%, ये मेरे तो ख्याल में इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। नहीं मैडम मैं तो आई डोंट थिंक सो। हाँ शॉर्टेज भी है और वो चाइल्ड मैरिज की भी वजह है, ये सारा कुछ है। बच्चियों को तो स्कूल से वैसे ही निकाल देते हैं, वो प्राइमरी के बाद बच्चियों को स्कूल से निकाल देते हैं। मैडम ये ओवरऑल है, अभी जो हम यहाँ प्रेजेंट करें, जो आप सेकंड इंडिकेटर देख रही हैं 4.1.2 दैट इज ओवरऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स। मेन क्वेश्चन था ना, आई थिंक वो भट्टी साहब से दैट वाज। तो फिर आप ये देखें ना, अगर आपने प्राइमरी लेवल पे सेग्रीगेट किया है गर्ल्स और बॉयज़ का, तो फिर आपको ये लोअर सेकेंडरी और अपर सेकेंडरी में भी करना चाहिए। अदरवाइज तो वी डोंट नो व्हाट द रियल इंडिकेटर इज। वहीं पे तो मसला है सारा। What the question is, जो भट्टी साहब ने बात की है ना, that is the most important point. If you saying reading उसने this is Pakistan वो पढ़ रहे हैं, what are they reading? What the अमर भट्टी साहब asked, तो वो हमें ज़रूर बताइएगा कि उसका है क्या। सैंपल भी शेयर कर लेंगे, जो फॉर्मेट है जिस पे क्वेश्चनर किया जाता है और जो उनसे टेस्ट लिया जाता है वो भी हम आपके साथ शेयर। It's approved internationally, it is recognized internationally. सर ये इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी है डेवलप्ड बाय यूनिसेफ, तो उसके अगेंस्ट। सर ये यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में रोज़ा ऑफिस है जो ये इसको हमारे सर्वे को वैलिडेट भी करते हैं, वहाँ से इंडोर्स हो के आके फिर यहाँ सर इसको हम पब्लिश करते हैं सर। और सर ये इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी है, नथिंग लोकल। थैंक यू सर। सर इसके बाद है आपका यूथ इन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये सर एक अच्छा इंडिकेटर है जो कि 31.01 से इम्प्रूव करके 46.6 पे चला गया ओवरऑल सर हमारा। सर आपकी इजाज़त से अगर मैं जेंडर इक्वालिटी पे आ जाऊँ गोल नंबर 5 पे, सर अर्ली मैरिजेस, अब ये वो इंडिकेटर है जो उसको सर आपने जो बात की थी, आप देखें सर अर्ली मैरिजेस बेसलाइन 20.8 थी जो कि रिड्यूस होके 13.8 पे आ गई सर। तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप, क्यों हुआ है ऐसा?
खासी इसके ऊपर अवेयरनेस है। ये रिड्यूस से क्या रिड्यूस मतलब अब अर्ली मैरिजेस नहीं हो रही हैं, कम हो रही हैं, कम हो गई। ये डाटा कहाँ से आपने लिया, जरा हमें भी बता दें। ये किसने आपको आके बताया? मैडम ये देखें, हमारे पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स और पंजाब ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स, दीज आर आवर ओन इंस्टीट्यूट्स जो हमारे इदारे हैं, और ये विद द कोलैबोरेशन ऑफ जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं लाइक यूनिसेफ या वर्ल्ड बैंक, मैडम इनके साथ मिलके हम ये सारा डिज़ाइन। I'm working with UNICEF, I'm working with UN Women, I'm working with UNFPA, and they all are crying out loud for the Child Marriage Restraint Act to go through. अगर ये इतनी इम्प्रूवमेंट हुई होती तो वो उनको ये स्यापा ना हमसे ज़्यादा उनको स्यापा है, लेकिन हमें होना चाहिए स्यापा, बिकॉज वी हैव टू वरी अबाउट आवर चिल्ड्रन। मैडम ये नंबर आपके मुताबिक ठीक है, इसको 20 से 13 पे नहीं आना चाहिए, इससे मज़ीद कम होना चाहिए, यानी 13 इज़ स्टिल अ बिग नंबर अगर देखा जाए तो। यू आर 13 is wrong. She is saying it's now 24. That's what she says. मेरे ख्याल में what she ये कहना चाह रही हैं कि अभी तक शायद उस तरह ही अर्ली मैरिजेस हो रही हैं, या यू आर नॉट अग्रीइंग विद देखिए जी, वो उसी तरह हो रही हैं क्योंकि कानून आपका कहता है कि आप 16 साल की बच्ची की शादी कर सकते हैं, तो कोई 11 साल की भी वो कर देगा। आईडी कार्ड तो नहीं है, 12 साल की भी हो रही है, 13 साल की भी हो रही है, 14 साल की भी हो रही है, सारी हो रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी कम हो गई है? आपके पास क्या पैमाना है कहने का क्या कम हो गई है? आपके पास तो कोई कानून ही नहीं है अभी तक। मैडम कानून एक चीज़ है और इसके साथ जो हमारी अवेयरनेस है वो भी है पैरेलल। अभी लोगों के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी है। ये अगर आप देखें ना, जिस प्रोपोर्शन से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उस हिसाब से तो ये एक नंबर स्टैगनेंट ही है। इसके अंदर अगर हम पॉपुलेशन का 2.7% ग्रोथ रेट भी लगाएं तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुआ। ये तो वो परसेंटेज है जो कि दी गई है इसके ऊपर बेसलाइन के साथ कंपेयर। एक तो वैसे भी आप प्लीज बेसलाइन 10 साल पहले की हमें ना दें। 10 साल में तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। आप मैक्सिमम 5 साल की दें ताकि हमें थोड़ी प्रोग्रेस पता चले हमारी क्या है। मैडम मेरे ख्याल में वो तो इंटरनेशनली SDGs ने जो एक अपनी बेसलाइन सेट की हुई है, वो तो उन्होंने उससे ही हमें कंपैरिजन करके देना है। उसमें तो वो हम उनसे पूछ तो सकते हैं कि 5 साल पहले क्या था और अब कितना डिफरेंस है। अब आप मुझे ये बताएं ना, बेसलाइन तो जो 2030 तक हम टारगेट्स कर सकते हैं अचीव भला? अगर अभी 10 साल में हमने ये किया है आप तो 2030 में हमने कहा, मतलब 100% तो मुझे नहीं पता लगता कि कहाँ से हमने नहीं बताया। दैट इज ट्रू, वो तो पाकिस्तान इज 2030 में 5 साल रह गए, 10 साल में तो आपकी ये कारकर्दगी है। तो मेरे ख्याल में 2030 तो ड्रैग करना पड़ेगा। सर कंटिन्यू। अच्छा थैंक यू सर। सर इसके अलावा जो एक तो ओनरशिप ऑफ मोबाइल फ़ोन इट हैज़ बीन ड्रास्टिकली इम्प्रूव, 39 से सर 59.6 पे चला गया। ये हुई ना बात। थैंक यू मैडम। मान साहब, ये इंडिकेटर्स जो आपने लिए हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को थैंक यू कहें। क्या ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल इंडिकेटर्स हैं? चेयरमैन साहब, दिस इज वेरी अलार्मिंग साइन। लोगों के पास रोटी नहीं है खाने को, टेलीफोन का है। जैसे ये आप कह रहे थे ना अर्ली मैरिजेस का, ऑल्दो आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर। यस्टरडे द नेशनल असेंबली में जो हुआ है तो मौलाना फजल साहब ने कहा यू कैन नॉट मेक ए लॉ ऑफ अंडर मैरिजेस का। जब ये हमारा रिलीजियस पॉइंट आ जाएगा तो दिस विल अफेक्ट एवरीथिंग। लॉ इज ऑलवेज। मौलाना साहब को ये पता होना चाहिए कि 25 जो इस्लामी ममालिक हैं इनमें ये कानून नाफिज है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। तो मौलाना साहब अपने फतवे अपने पास रखें। मैं तो आपको नेशनल असेंबली जो आपकी है वो तो मौलाना साहब ही हर दफ़ा आते हैं और मौलाना साहब ही हर दफ़ा इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स नॉट अबाउट ये इस्लामिक एक जो बेसिक, वो मेरे ख्याल में लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं शायद कि ये चीज़ वैसे अवेयरनेस है समथिंग डिफरेंट। वो जो कह रहे हैं कि दिस शुड नॉट बी पोलिटिसाइज्ड, कि जो भी है लोगों को गुर्बत होती है, बच्चे जो हैं दे आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पुअर पीपल। आप छोटे छोटे बच्चों को आप नौकरियों पे चले जाते हैं और आप किसी भी जाएं होटल में उनकी जो मेड्स आती हैं, लुक एट देम। तो इसलिए ये है कि दिस इज ए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि you need to have some sort of awareness. जी सर। अमान साहब, sir, that is child labor. Gender equality and we have to fight against child labor also. Definition यही तो मसला है सारा।
मार्क हो जाते हैं। सर मेरे ख्याल में ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल में अमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अमान साहब प्लीज सर। आप अगर इसको यार मैडम तो आप फिर खाना काबा और मदीना मुनव्वरा जाते हैं, क्यों जाते हैं? आ जाएं, सऊदी अरेबिया में तो ये रूल है आपका, 25 और मुस्लिम ममालिक में भी ये रूल है कि 18 साल से कम की शादी नहीं हो सकती। So I'm talking about the Muslim Ummah. I'm talking about the Muslim Ummah here. मैडम उज़मा, मेरे ख्याल में इसको ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द डिबेट अभी इस टाइम। प्लीज अमान साहब सर। अच्छा सर, आपने जेंडर इक्वालिटी की डेफिनेशन के हवाले से पूछा। जी जी मान साहब प्लीज कंटिन्यू करें यार। सर जेंडर इक्वालिटी की आपने डेफिनेशन के हवाले से पूछा। बेसिकली सर जेंडर इक्वालिटी का हमारा गोल है कि एक तो हमारी जो जेंडर है फीमेल जेंडर, उसको हमने एम्पावर करना है और उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं वो हमें यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली उनको एम्पावर करने का और उनको इक्वालिटी तक लाने का क्या पैमाना है वो सर वो हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सर। क्या ये जो आपने 5.B.1 जो लिखा हुआ है ओनर ऑफ मोबाइल ओनरशिप ऑफ मोबाइल फ़ोन, जी सर, ये इसकी डेफिनेशन में इंक्लूडेड है? जी सर। नहीं दिस इज़ नहीं, ये इसलिए है क्योंकि फिर वो इजी पैसा जैज़ कैश में उनको जो भी अगर वो मेहनत करती हैं कोई काम करती हैं तो डायरेक्ट पेमेंट उनको आ जाती है, इससे वो एम्पावर होती हैं, ये एम्पावर होती हैं इससे। These are given within the जो goals के अंडर इंडिकेटर्स SDGs ने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कराए हुए ये उसके अंदर है सर। तो ये लेकिन मोबाइल होना उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को फैसिलिटेट करता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन को सॉरी एक्सेसिबिलिटी ठीक है मैं नहीं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका किसी भी स्कीम में प्रोजेक्ट में जेंडर एक्शन प्लान क्या होता है? मसलन फॉर एग्जांपल आप किसानों के लिए कोई स्कीम निकालते हैं, आप कोई स्पेसिफाई करते हैं कि जी वो फीमेल फार्मर्स हैं उनको भी इस स्कीम में से इतना हिस्सा मिलना चाहिए? आपने कोई इस तरह का जेंडर प्लान किया है कि वो एम्पावर हों ख़वातीन? इसके अंदर जब ये प्लान की जाती हैं तो इसमें चीज़ें देखी जाती हैं। हमने जब ये एग्रीकल्चर वाला इसका डेटा जब कलेक्ट किया तो मार्जिनली कोई फ्रैक्शनली कोई फीमेल थी जिनके पास ओनरशिप ऑफ द लैंड थी और वो उसको कल्टीवेट भी कर रही थी, तो इसको उस बुनियाद के ऊपर सेग्रीगेट कर नहीं किया जा सकता था। तो आपको पता है कि 60% लेबर ख़वातीन पे मुश्तमिल है रूरल एरियाज़ में, 60% फील्ड्स में आपकी ख़वातीन काम करती हैं, मेहनत कश हैं सारी वहाँ पे। पंजाब अलोन It doesn't. नहीं देखें आपको सर प्लीज नहीं यस दैट्स ट्रू। बिलाल भाई प्लीज सर समझता हूँ कि जेंडर इक्वलिटी कोई ख़वातीन को इम्पावर करना नहीं, कोई मर्दों को इम्पावर करने की भी बात कीजिए कि उनके लिए क्या ऐसा किया गया है। जहाँ पर भी बात हो ख़वातीन के हवाले से वो चली जाती है। मैं जेंडर में तो दोनों जो हैं जेंडर्स आ जाते हैं। क्यों आपको पता है कि सबसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी पाकिस्तान में ख़वातीन की है, सबसे मार्जिनलाइज्ड, सबसे ज़्यादा आपको देख के नहीं लगता poorest of the poor are women in this country। आप कहीं से स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, उनकी कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। किसकी? ख़वातीन की। मैडम वो कोई घर में अगर कमाती भी है। आज पंजाब की वज़ीर आला खातून हमें ना देखें, नहीं आप हमें ना देखें। आज पंजाब की मिनिस्टर इंफॉर्मेशन We are the minority just now. We are the minority. We are the minority. We are not the majority. सर लेट्स गेट बैक टू द ब्रीफिंग प्लीज। सर मैं इस जेंडर पे मुझे थोड़ी सर ये अलग मर्दों को भी बैठते हैं इसके बाद अलग। बिलाल भाई जी सर आप कुछ बोलेंगे जेंडर इक्वालिटी पे? हाँ, ये भी मर्दों के हामी हैं। होने चाहिए। अच्छा वैसे आई एग्री विद सर, ये आपके जो फार्मर्स वाली बात है ना जी एग्रीकल्चर में जितने भी फर्स्ट टू द मेंबर्स प्लीज कि अगर हम वी कैन गेट विद द प्रेजेंटेशन फर्स्ट एंड देन हम अपने सवालात प्लीज अगर नोट करते रहें एंड गेट टू द डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन इफ यू कैन प्लीज। थैंक यू जी। थैंक यू प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सर। इसके अलावा इंडिकेटर जो हमारे 5.6.1 वो हमें
बताता है डिसीजन मेकिंग ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इट इज़ अबाउट फीमेल्स। तो तकरीबन जो रिसेंट वैल्यू सर दैट इज़ अराउंड 30%, और प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स हेल्ड बाय वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, आई मीन जो हमारी सब नेशनल गवर्नमेंट है सर, वो 20% थी इन 2014, अभी जो हमारे पास नंबर है दैट इज़ 25.7। सर नेक्स्ट आ जाते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सर ये वो सेक्टर, वॉश सेक्टर, जिस पे मैसिव इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर भी रही है सर। सर सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर पे आप देखेंगे बेस लाइन थी हमारी 2014 की 43.7, और रिसेंट वैल्यू सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर 23.4। सर इस पे क्वेश्चन जी सर डिक्लाइन हुआ। सर इसके अलावा बेसिक एंड इज रियली अलार्मिंग। उसके बाद सर बेसिक एंड इम्प्रूव सैनिटेशन जो फैसिलिटी है 75.1 थी 2014 में, अभी 87.3 हो गई है। सेफ डिस्पोजल ये आपने कैसे अंदाजा लगा लिया, कहाँ से अंदाजा लगा लिया? मैडम दिस इज नॉट, sanitation is the last thing on our minds actually. Please sir continue. अच्छा इसके बाद है सेफ डिस्पोजल इन थ्रू ऑफ वेस्ट एक्सक्रीटा फ्रॉम इम्प्रूव्ड ऑन साइट सैनिटेशन फैसिलिटीज। अब ये देखिए मार्जिनल से इसमें इंप्रूवमेंट आया 73.2 से 75.8। यूज़ ऑफ बेसिक सैनिटेशन सर्विसेज में 70.4 से 73.2 पे आ गए हम। ये की इंडिकेटर्स हैं जो हम बेसिकली गोल 6 के आपके सामने प्रेजेंट किए सर। सर इसके बाद क्लीन एंड आपकी देखें ना डिस्क्रिपेंसी तो ये आपके सामने आ गई है कि निचले वाले जो हैं दो, वो 2 या 3% बेहतर हुए। इसमें आपके 10-12% की जनाब इंप्रूवमेंट हो गई है। मैडम उज़मा मैंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप इनको साथ साथ नोट करते रहें, और इसकी प्रेजेंटेशन क्योंकि 17 गोल्स हैं और उनके आगे फिर सब इंडिकेटर्स भी हैं, दिस विल टेक ऑल डे अगर हम वी कीप देम। सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। इसके अलावा सर गोल 7 पे आ जाते हैं तो क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी की बात करें तो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी हम आपको बता चुके हैं सर, इंप्रूव किया ड्रास्टिकली। क्लीन फ्यूल एक्सेस जो कुकिंग के लिए है सर दैट इज़ 38.9 से 50.3 पे आ गए सर। और क्लीन फ्यूल एक्सेस पे सर राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स का लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, तो थोड़ा सा जो डिप्राइव डिस्ट्रिक्ट्स हैं दीज आर मोस्टली साउथ पंजाब के राजनपुर, भक्कर, लिया, मियांवाली एक्सेट्रा। इसके बाद सर हम आ जाते हैं डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे सर। सर प्रोपोर्शन ऑफ यूथ नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो कि यानी हमारी यूथ की तरफ हाईलाइट करता है, जो हमारे बच्चे और बच्चियां ना जॉब कर रहे हैं, ना दे आर लुकिंग फॉर जॉब, ना कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ना एजुकेशन ले रहे हैं। सर ये नंबर बेस लाइन 29% था और अभी इसमें कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आई, दैट इज़ 28.7%। It's gone down in fact. यानी जितना नीचे चला जाए उतना अच्छा है, पर बहुत मार्जिनल इंप्रूवमेंट आई है इसमें। उसके बाद चाइल्ड लेबर पे मैडम सर हम आपको बता चुके हैं कि देयर हैज़ बीन अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट, 16.4 से 8.5 पे आ गए हम लोग। इसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन टोटल एम्प्लॉयमेंट बाय सेक्टर एंड सेक्स, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में 74% था और अभी भी 74 पे हैं सर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाय सेक्स, एज एंड पर्सनस विद डिसेबिलिटी हमारे पास, क्योंकि टोटल एम्प्लॉयमेंट का नंबर था 6.29 है, पंजाब में 2014 में थी, अभी एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ गया है और 7.4 पे जी अनएम्प्लॉयमेंट जी बढ़ गई है। आप काइंडली आपने तीनों स्टैटिस्टिक देखें और इसको ज़रा कोरिलेट करें। मैं आई जस्ट रीड बिकॉज सर ने कहा है कि आप करें, बट वो बहुत बात रह जाएगी। देखें सर, आप यहाँ पे कह रहे हैं प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन दी 8.6.1, आप इसको कह रहे हैं इसमें डिक्लाइन आया 28.7 पे, ऐसे ही है। बेस लाइन 29 थी 2014 में। अगले पे आप कह रहे हैं चाइल्ड लेबर जो है 16.4 पे, आप ड्रास्टिक चेंज आई है 8.5 पे। अगले को अभी आप जाएँ प्रोपोर्शन ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट 74 थी। एग्रीकल्चर इज़ द मेजर एम्प्लॉयमेंट सोर्स इन पंजाब, वो 74 पहले भी थी, अभी 74 है। सॉरी नॉन एग्रीकल्चर में जो है, यस नॉन एग्रीकल्चर में 74 थी। एम्प्लॉयमेंट रेट बाई सेक्स है, इसको आप छोड़ दीजिए, तीनों वालों को कोरिलेट करें तो एम्प्लॉयमेंट हुई कहाँ पे जो आप 28.7 पे लेके आए हैं, और जो आप फिगर दे रहे हैं कि जी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बड़ी बढ़ चुकी है। आई विश ये बढ़ चुकी होती, बड़ी खुशी की बात होती। नहीं, एक मिनट, नहीं बड़ी, कम हो गई है।
इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, आप कहना चाह रहे हैं ना? थैंक यू सर। जी सर। अच्छा ठीक है सर आपको जी सर। अच्छा सर, इसके बाद है गोल नंबर 9 है हमारे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर। जो हमारा गोल नंबर 9.2.2 है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। सर आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारा 16.5 का नंबर है दैट इज़ प्रीटी मच द सेम। जिस तरह हमारे एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज़ अराउंड 40%, इसी तरह हमारा इंडस्ट्री वाले सेक्टर में भी स्टेगनेंट है, वो इस 16.5% लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉय हैं। पॉपुलेशन कवर्ड बाय मोबाइल फ़ोन ओवरऑल ये हमने आपको नंबर दे चुके हैं। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ में सर आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन। सर दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, इस पर भी बाद में रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो डेफिनेटली डिबेट होनी चाहिए सर। कि बेस लाइन 9.7 था और अब जो हमारी डाटा के मुताबिक अगर इसकी डेफिनेशन सर हम आपको बताएंगे, रिसेंट वैल्यूज़ 25.4 के मतलब ये इम्प्रूव हुआ है कि क्या बढ़ गई, इट्स गॉन डाउन। और वैसे भी जो आप ये इनइक्वालिटीज़ है इनको आप कैटेगराइज करें, किस किस इनइक्वालिटी की आप बात कर रहे हैं? ये ऐसे एक ये वेग है बहुत ज़्यादा। मैडम ये हम आपको डेफिनेशन मिस्टर चेयरमैन साहब एक आवेदन परमिशन सर प्लीज। अगर ये काइंडली साथ साथ ये बताते रहे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का इन्होंने बताया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अराउंड 16% ही रही है, 40% है एग्रीकल्चर की, तो इसका ऑप्टिमम क्या होना चाहिए? बाकी दुनिया में क्या साइज, क्या परसेंटेज है जो ऑप्टिमम हम चाहते हैं कि होनी चाहिए? जी इस पे कुछ आप कहना चाहिए? सर इसमें कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। कोई एग्रीकल्चर कंट्री है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, एग्रीकल्चर साइड पे आपकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी इसके ऊपर करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आपकी उसके अंदर उसको कर रही होती है। हम एक आपके सामने एक पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड वेरिएबल्स तो बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर, लेकिन फिर भी आइडियली क्या नंबर होना चाहिए? सर इसके लिए तो गोल तो हमारे 100% अचीव करना है, जो हमने बाय 2030 पे जाना है। यानी अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको हमने ज़ीरो करना है, और अगर हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है तो 100% क्रिएट करनी है। नहीं, मेरे ख्याल में what अली गिलानी साहब मेंट के जो एक प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, या जो आपके डेटा के हिसाब से जो कंट्रीज जो हाँ जी वो कोई बेंचमार्क तो सेट हुआ होगा ना कि जो एसडीजीज के साथ ज़्यादा अलाइन और ज़्यादा अच्छे तरीके से रैंकिंग में भी ऊपर जा रही है। हम तो डिक्लाइन किए हैं पिछले 3-4 सालों में। सर विद योर परमिशन सर, आपका क्वेश्चन इज़ वेरी रेलिवेंट एंड वेरी वैलिड। एक तो नंबर 1 ये कि सर जिस तरह हमारा एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में पंजाब की बात करूँ तो 20% है, पर हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज़ 40%। आप एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर 20% लेके जा रहे हैं, पर आपकी जो लेबर फोर्स इंगेज है दैट इज़ डबल ऑफ योर जीडी, यानी हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल इज़ वेरी लो विच इज़ अलार्मिंग। बिल्कुल ठीक है, 40% से इसको कम अज़ कम, यानी अगर हम एक रेशो अगर बरकरार रखते हैं तो 20% पे आना चाहिए। आपका मैन्युफैक्चरिंग का तकरीबन रेशो इज़ प्रीटी मच सेम। आपका इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में तकरीबन 17% ही है, तो हम तकरीबन उतनी ही एम्प्लॉयमेंट उधर जनरेट करें। सर्विसेज सेक्टर का हमारा कंट्रीब्यूशन हमारी प्रोविंशियल जीडीपी में तकरीबन 60% है, तो वो मोस्टली हमारी जो बाकी 40 + 16 अगर हम माइनस कर दें सर तो 56 में से बाकी जो बचा दैट इज़ 40-45% इज़ सर्विसेज सेक्टर। तो नॉर्मली जो नहीं सर दिस इज़ नॉट, आपने कहा आइडियल सिचुएशन क्या होती है। आइडियल का सर ये है कि हमारा अगर एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में 20% है तो रेशो सही होनी चाहिए। हमारी प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो इन एग्रीकल्चर, बहुत से मुल्कों से दुनिया से। बस another problem is कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी 70% है। काम हमारे बहुत लोग कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट अकाउंटेड एनीवेयर, दे अनडॉक्यूमेंटेड। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो तो उनका ना उनके आईडी कार्ड्स भी कईयों के नहीं हैं, ना वो सोशल कोई सिक्योरिटी है उनकी, तो वो काम तो कर रही हैं ना, मेहनत तो वो कर रही हैं, लेकिन इट्स अनअकाउंटेड फॉर। मैडम आपका
भी क्वेश्चन, ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वैलिड है। द डेफिनेशन जो हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की इस्तेमाल करते हैं वो ख़वातीन उसका पार्ट नहीं बन पाती। ऐसे ही है आइजक? तो मैडम आपका वैलिड क्वेश्चन है और बिल्कुल वो अनअकाउंटेड फॉर है। प्लीज़ तो आगे चलिए। उसके बाद सर हम नेक्स्ट गोल नंबर 11 पे आ जाते हैं। सर ये है वो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के हवाले से। सर ये गोल इस पे है ना, मोस्टली हमारे पास जो प्रोविंशियल लेवल का डाटा अवेलेबल नहीं है गोल नंबर 11 में, पर जो एक डाटा हमारे पास लेटेस्ट, हमारे पास जो एक बेहतरीन डाटा अवेलेबल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का, वो ये है कि हमारा जो 2023 का सेंसस हुआ था उसके मुताबिक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिफरेंट पंजाब के, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ इंक्रीजिंग विच इज़ अलार्मिंग। बेसिकली आप अपनी अर्बन सेंटर्स पे प्रेशर पॉपुलेशन का बढ़ता जा रहा है। तो एक और चीज़ जो सर इम्पॉर्टेंट है कि मैं थोड़ा सा एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। सर हमारा NFC का जो फार्मूला है, सर आप डिबेट करते हैं, दिस इज़ बेसिकली आपका प्रोग्रेटिव के, उसको हम किस तरह आगे लेके चलते हैं। 82% वेटेज हमने दी हुई है सर पॉपुलेशन को, 82%। इसका मतलब है कि आपने इंसेंटिवाइज किया हुआ है अपने NFC अवार्ड को कि पॉपुलेशन जितनी आप बढ़ाओगे उतना ही आपको शेयर NFC अवार्ड में मिलेगा। सर वो तो सर ये वो चीज़ें जो कि हमने आपसे साउथ पे अलग ब्रीफिंग लेनी है सर। चले सर ऐसे हो गया सर। अच्छा सर इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं गोल नंबर सॉरी मैं पीछे चला गया सर। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं फॉर एग्जांपल लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, जो इसका हमारे पास डाटा रेडीली अवेलेबल नहीं है प्रोविंशियल लेवल का, वो नेशनल नंबर्स अवेलेबल हैं सर, वो हमने स्किप कर दिए। तो जब हम कोशिश कर रहे हैं कि डाटा गैप्स अगर हम कंप्लीट कर लें तो वो डाटा हम आपको प्रेजेंट करेंगे। मैं सीधा गोल नंबर 16 पे आ रहा हूँ सर। डज दैट मीन कि उनकी कभी कोई बेसलाइन भी सेट नहीं हुई, वो कभी भी डाटा नहीं हम सर वो नेशनल लेवल के नंबर हैं। अच्छा प्रोविंशियल लेवल पे पंजाब स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, यानी बाकी सूबों के भी स्पेसिफिक नहीं है, वो सिर्फ नेशनल नंबर अवेलेबल है सर। ठीक, तो वो वी कैन एक इनिशिएट कर सकते हैं, हम इनिशिएटिव ले सकते हैं इस पे कि जी सर, पंजाब कैन बी द फर्स्ट वन जो इन चीज़ों पे भी डाटा अपना। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चेयरमैन साहब। हमें चाहिए कि हम पहले जो बड़े 10 शहर या 5 शहर हैं उनका पानी नीचे वाला लेके पहले उसको तो लेके आए ना डाटा उसका, बिल्कुल, ताकि पता चले हम पानी कौन सा पी रहे हैं। वो तो वी कैन टेक द लीड ऑन दिस कि अगर कोई भी सूबा पहले ये काम नहीं कर रहा तो व्हाई कैंट वी, हमारे पास रिसोर्सेज भी शायद ज़्यादा हैं और HR भी। सर हमारे पास हमारा जो ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है पंजाब का, दैट इज़ द लार्जेस्ट वन इफ़ वी कंपेयर विद अदर प्रोविंसेस सर। और हम सर ये वो चीज़ें जो आप यानी हम गैप अगर करते हैं तो थ्रू अपने ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स वो सारा डाटा हम कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर नेक्स्ट पे अगर हम आ जाएं, इस पे बर्थ रजिस्ट्रेशन इम्प्रूव किया पंजाब में, बाकी सूबों में बहुत कम है ये नंबर। डिस्क्रिमिनेशन पे बात हुई, इस पे सर डिटेल में बाद में बात करेंगे क्योंकि इसकी डेफिनेशन के इश्यूज हैं सर। सर ये वायलेंट डिसिप्लिन जो है, ये जो हमारे बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उनसे जब क्वेश्चन किया गया कि आपको डांट डपट होती है, हल्का बहुत एक आध थप्पड़ लग जाता है, तो बच्चे कहते हैं तकरीबन 83.1% कि हाँ हमारे साथ ये सलूक होता है। 2014 में कम बच्चों को मार पड़ रही थी, अब ज़्यादा पड़ रही है सर, वो क्लाइमेट चेंज का शायद इफेक्ट है सर। ये आपने उनसे पूछा है कि माएँ ज़्यादा मार रही हैं या ये जब पूछे इनसे सवाल करें ये जेंडर इनइक्वालिटीज का गुस्सा बच्चों पे तो ना उतारे ना, ये अगर कोई इनइक्वालिटी हो रही है तो। आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरल पनिशमेंट है, कभी-कभी होनी चाहिए कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो तो स्कूलों में कंपैशन भी आ गई एक मदर की तरफ से, माएँ मार रही हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। अब्बा जान मार रहे हैं। गजाली ने कहा है, इमाम गजाली ने कहा है होनी चाहिए, इमाम गजाली ने। हमें सर इसमें डिफरेंट फेजेस थे, बेसिकली ये अगेन वही सेट मॉड्यूल है बाय यूनिसेफ डेवलप किया था, उसी को ये अडॉप्ट किया था। इसमें बेसिकली रिस्पोंडेंट पेरेंट्स ही होते हैं, पेरेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसमें। गिलानी साहब को आगे इधर आ जाए, आगे आ जाए।
इसका मतलब है हमें कोई कानून पास करना पड़ेगा बच्चों के लिए। हाँ कि नहीं कि वो कॉल करके तो फिर बच्चे जो है सूतर कर सकते हैं। मेरे बेटे को एक बार मैंने मारा है, वो मुझे अब कहते हैं मम्मी आपने मुझे मारा था। मैंने कहा कब? जब मैं 7 साल का था। सर प्लीज ये कन्फेस कर लिया इन्होंने। अच्छा सर, ये थे तकरीबन हमारे जो इंडिकेटर्स जिस पर डाटा रेडीली अवेलेबल था और लेटेस्ट डाटा जो हमने आपको प्रेजेंट किया सर, जो तकरीबन हमारे 17 गोल्स हैं सर। सर ये वो डाटा सोर्सेज हैं सरकारी जो ऑफिशियल जहाँ से हमने डाटा ले सकते हैं या अवेलेबल है सर। सर इसमें पंजाब ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का मिक्स सर्वे इज़ द फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हर 3 साल बाद होता है, पर इस दफ़ा 7 साल बाद हुआ। दरमियान में कोविड और फ्लड आ गए थे जिसकी वजह से डिले हो गया सर। सर इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पावर्टी एस्टिमेट्स देती है सर। सर इसके अलावा पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के पास बेतहाशा सर्वे, अब उनका है कि प्रोग्रेटिव वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का डाटा दें, प्रोविंशियल लेवल का दें या नेशनल नंबर दें सर। उनके पास सर पाकिस्तान सोशल लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे है सर। हमारे पास आप लोगों की टीम में अभी आप लोग कोई ये पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कोई है रेप? अच्छा आप हैं या आप SDG 17 आपने इंक्लूड नहीं किया? मैडम वो उन्होंने कहा है कि कुछ गोल्स का डाटा नेशनल लेवल पे अवेलेबल है, प्रोविंसेस ने कभी काम ही नहीं किया उस पर। तो ही मैंने आपने सुना होगा मैंने कहा है कि डाटा आना चाहिए, टेक द लीड। नहीं प्रोविंस हम पंजाब हैं, हम लीड ले सकते हैं इसमें कि पहला प्रोविंस जो सूबाई लेवल पे भी इंडिकेटर्स पे SDGs यूनिट है, आप उनसे मंगवाएं, उनको बोले दें हमें। मैडम दिस इज यूनिट नहीं, लेकिन वो ये SDG यूनिट ये है मैडम, वो नेशनल लेवल पे है SDGs की। मैडम आप मुझे हुक्म करें इंशाल्लाह हम इसी पे काम करें। अब ये हमने स्टार्ट लेना है जी, ये इनिशिएटिव हमने लेना है हमने उन चीज़ों पे भी जिन पे नेशनली काम हो रहा है लेकिन सूबाई लेवल पे नहीं हो रहा। सर ये अभी 3 महीने से दोबारा फंक्शनल हुआ है, पिछले थोड़ा सा अरसे में ना 1-2 सालों से थोड़ा डिसफंक्शनल था। चीज़ें अब आपके सामने बेहतर शक्ल में नज़र आ रही हैं आपको, तो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं सर। सर इसके बाद आ जाते हैं सर नेक्स्ट पे, मैं सर चीफ इकोनॉमिस्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ओवर टू यू सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। मैं अब सर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ। सर आपकी बात शुरू होने से पहले क्योंकि आपके ही रेलेवेंट है विद द परमिशन ऑफ द चेयर, ये भी आप बता सकते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेंडिंग करती है तो उस स्पेंडिंग के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज के जिस तरह आपका डाटा बना हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, बाकी जो इंडेक्सेस बने हुए हैं, तो क्या उसको मद्देनज़र रखती है और अगर रखती है आपसे डाटा लेती है? सर कोशिश हमारी ये होती है कि हम चीज़ों को जितना भी अपनी पॉलिसी और प्लानिंग के साथ अलाइन कर सकें उतना किया जाता है। एक सर मैं विद द परमिशन ऑफ द चेयर ये कहूँगा कि बेसिकली ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है डेवलपमेंट प्लान जो होते हैं। हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अपनी प्रायोरिटीज़ हैं उनकी, लेकिन बाय एंड लार्ज हम जब कोशिश करते हैं तो उसके अंदर जो फंडामेंटल्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। उसमें हमारी अलाइनमेंट विद द SDGs, हमारी पॉलिसीज़ के साथ अलाइनमेंट, और जो हमारे फंडामेंटल्स हैं रीजनल इक्वलाइजेशन, इंक्लूसिविटी, और अब जो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर हमारा आ रहा है वो क्लाइमेट और रेजिलियंस का है, वो भी इसके अंदर फैक्टर इन किया जाए। तो ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक सपोर्ट तो प्रोवाइड करता है, बट द डिसीजन लाइज विद द गवर्नमेंट ऑल्सो सर। तो जहाँ पे जाके फाइनलाइज होनी है आपकी डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, वहाँ पे फिर सारी चीज़ें सर कन्वर्ज होती हैं और कन्वर्ज होके एक हॉलिस्टिकली उसका एक फिर अप्रूवल दी जाती है। जारी रखो सर। अच्छा सर, इसमें हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो इनिशिएटिव्स हैं इसमें सर अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर 236 बिलियन रुपीस की सर इन्वेस्टमेंट हो रही है इस साल। सोशल सेक्टर में देखें तो सर 10, ये मैं इनिशिएटिव्स की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोशल सेक्टर में सर 104 बिलियन के CM इनिशिएटिव्स हैं, सर्विसेज सेक्टर में 9.22 बिलियन है। इसमें अब मज़ीद इंक्रीज़ होगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर इसका मेजर रिसिपिएंट है और स्किल डेवलपमेंट इसका मेजर रिसिपिएंट है। प्रोडक्शन सेक्टर में 33 नो सर, नो सर,
नो सर नहीं. Her connect to the well-being of the people of Punjab. सर मैं गुजारिश करूं, जो T30 प्रोग्राम ट्रांसपोर्ट का आया है उसके अंदर पूरे पंजाब के तमाम अर्बन सेंटर्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रोविज़न लाई जा रही है. उसके अंदर तमाम अर्बन ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बसेस पे कन्वर्ट किया जाए. इलेक्ट्रिक बसेस. तो ये सर कोई इसके अंदर डिस्क्रेशन कहीं पे भी नहीं है. वो जो रीजनल इक्वलाइजेशन वाली मैंने बात की सर, उसको एडहियर किया जा रहा है. दूसरा सर आपने देखा होगा सुथरा पंजाब प्रोग्राम, उसके अंदर सैनिटेशन क्लीनलीनेस के ऊपर पूरे पंजाब अक्रॉस द पंजाब फोकस है. हेल्थ के अंदर आप देखें सर, हमारे तमाम पंजाब के 2800 बेसिक हेल्थ यूनिट्स की रीवैम्पिंग हो रही है. 300 RSCs की रीवैम्पिंग हो रही है. हेल्थ सेक्टर के अंदर अक्रॉस द पंजाब हो रहा है. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे पंजाब के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो आपकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है. तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है. इसमें कुछ मोटरवेज भी शामिल हैं? नहीं मैडम, इसमें मोटरवेज नहीं है. मोटरवेज चूँकि वो फेडरल गवर्नमेंट का है, उधर से इन्वेस्ट होती हैं, तो उधर से तो ये हमारी सिर्फ अपनी जो अपनी रोड्स हैं. 700 के करीब सड़कें हैं मेरे ख्याल में. मुझे इसका मैडम इस वक्त आई एम सॉरी, मैं 17,000 किलोमीटर. नेक्स्ट राजी, ये हमारा पाई चार्ट है ADP का. इनिशियली इट वाज 946 बिलियन. सरदार अहमद साहब, 3 बजे आपने आना है. जी वो 3 बजे आपने आना है. सेनेटर साहब आ रहे हैं. ठीक है सर, मैं कॉल 3 o'clock. ठीक है. चौधरी शाफी आपके बाद वो किस तरह की मास वाइज सैनिटेशन के और ये बड़े थोड़े से लोग हैं ये जो डाटा है जो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं. बहुत थोड़े लोग हैं इनिशिएटिव्स का. ये अभी इस साल जो अभी हम ADP करने जा रहे हैं वो है. नहीं सर, ये जो चल रही है ADP जो ऑनगोइंग है, पिछले साल की बेसिकली है. 24-25 नहीं बनेगी तो फिर जी सर, नहीं अलग है सर. नहीं, ये जो डाटा लेके आए ये पिछले साल का. अब आप लोग कितने माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स हैं? आपको मिला के 6 लोग हो गए. मास वाई फेल्बोस के मैंने बाकी 500 को आज तक हाउस में बात करते नहीं सुना. एक्सक्यूज़ मी, ये हमारा जो ADBP को कौन डील कर रहा है? आप कौन सा डिपार्टमेंट? तो आप हेड कर रहे हैं. तो मैं एक तजवीज़ देना चाह रही थी कि मैंने कहा ब्रेक आ गई तो मैं बात कर लूँ. कोई और काम नहीं कर सकते? मैं ये चाह रही हूँ कि पंजाब के हर ज़िले में एक ख़वातीन के लिए, वुमेन के लिए एक प्रोजेक्ट जो है ना, उसका फंड अलग से रख दें. उसमें कोई और सिमिलरिटी होनी चाहिए उसके अंदर. तो उसका बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा. मैं बता रही हूँ. आप वर्किंग हॉस्टल जैसे बनाएं अपने अपने ज़िलों में, तो क्यों नहीं एग्री कर रहे हैं? आपको मैं औरत का कहा है तो आपको क्या हो गया? नहीं, वो तो सारा बजट ही उन पे जा रहा है. मेरे भाई आप बात मेरी तरफ थोड़ी. तो इसीलिए तो कह रहे हैं औरतों को सहूलतें दें कि वो इनके साथ मदद कर सके. आप बात को नहीं समझ रहे. अच्छा ठहरे ना, मैं ADBP की बात कर रही हूँ, आपने मेरा सारा प्रोजेक्ट तबाह बर्बाद कर दिया. हम आपके साथ हैं, सही कह रही है जो ये यहाँ पे वो इनको आप विमेन कॉकस में मेजर रेफर्मेशन प्रोग्राम में डालें. हाँ, इनको तो हम इशरत आंटी ने इतनी मुश्किल से एक तमीज बनाई है, सारा काम आपने डालने बेड़ा गर्क कर दिया.
अच्छा जी, मेरी बात समझ आ गई आपको कि आप हर ज़िले में एक मखसूस पैसे जो है सिमिलर एक जैसे रखें ताकि इनके इस्लाम में भी जाए पैसे, तो वो ख्वातीन का प्रोजेक्ट एक जैसा चले। हमारी सीएम को भी क्रेडिट जाएगा कि ख्वातीन के लिए उन्होंने ये काम किया, तो उसके अंदर आप हमें सपोर्ट दें, खाली ख्वातीन ना देखें। अच्छा, आपको एक मैं इनके चलने तक एक बात बताती हूँ। एजुकेशन की बात मैं अभी बता रही थी, शेयर कर रही थी कि हमारे गाँव में तो बच्चियां स्कूल जाती थी, तो एक दिन बड़ा झगड़ा हो गया, तो बात मेरे तक भी पहुंची। तो मैंने कहा क्या हो गया, ये बड़ी पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि बच्ची ने घर आके बताया कि हमारी टीचर ने बताया कि कल आपको चिट्ठी लिखना सिखाएंगे, ख़त लिखना। उन्होंने कहा कल आप लोग स्कूल आएंगे, आपको हम ख़त लिखना सिखाएंगे, कैसे चिट्ठी लिखी जाती है। उसने घर में जाते हुए माँ बाप को बताया कि आज हमारी टीचर हमें चिट्ठी लिखना सिखाएंगी। उसके बाप ने डंडा उठा लिया। उसने कहा वो बेगैरत कौन है, बाप ने चुकिया। उसने क्या मेरे पिंड च होया, ताड़े पिंड च नहीं होया। तो उसने कहा कि चल मैं उन्होंने गाला कट के मैं उन्होंने देख लेना। उन्होंने एक काम शुरू किया सी पढ़ाने वास्ते बच्चियां टोरियां उन्होंने चिट्ठियां लिखनियां सिखाते ने। उसने अपनी बच्ची स्कूल से उठा ली। तो ये भी हालात थे, अब तब्दीली बहुत आई है। सती साहब, मैं बता रही हूँ वो भी हालात थे कि आज तक हम उस बात पे हंसते हैं कि चिट्ठी लिखी। अब मुझे बात करने दे। मैं ये कह रही हूँ कि ये उस वक्त की, अब आपने भी वही काम कर दिखाया। आपने चिट्ठी की तो बात नहीं की, आपने ये जरूर कहा कि औरतों के लिए प्रोजेक्ट ना बने। तो मैं ये समझती हूँ कि हम निकल आना चाहिए इस चीज से। आप अपना मर्दों की बात से मेंबर हैं, 85 से। मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो जब वो बात करती है ना तो जब ये पैदा हुआ इसको देखने में ही गई थी। आप पैदा हुए तो भाइयों को, आप पैदा हुए तो हम व्हाट्सएप पे आ चुके थे। अच्छा, ये कनेक्ट नहीं हो रहा, क्या इशू हो गया है? देख, इसलिए नहीं हो रहा कि मेरी बात पूरी हो जाए। तो मेहरबानी करके ये वो देखते भी नहीं है। अच्छा, मेहरबानी करके ये ख्वातीन का जो प्रोग्राम है, इसको जिसे भी आपने अप्रूवल लेनी है लेके पूरे इज़ला में, पंजाब के जितने भी ज़िला हैं इसके अंदर आप एक प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस ज़रूर करें। उसमें चाहे आप वुमेन हॉस्टल कर दें, वुमेन ट्रेनिंग सेंटर कर दें, कुछ ना कुछ अगर आप हमारे से मुशावरत करेंगे तो हम आपको और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। अब ये आपको पहले अपनी कैबिनेट से और अपने मिनिस्टर साहब से अप्रूव करवाना पड़ेगा। हम एग्री करते हैं। ये बेचारे तो एग्जीक्यूट ही करेंगे ना, इनके हाथ में तो नहीं है ये डिसीजन। वो शायद जाओ ज़िला खुशाब ही चले जाओ तो जाके कितने रहो, तो फिर इनको प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती है। तो वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल हमने बनाए हैं, इस्लामाबाद में भी बनाए हैं, हमने बहुत सारी जगहों पे बनाए हैं, मगर हमने एनजीओ के थ्रू बनाए हैं। अब ये हम चाहते हैं हाँ, एक नुसरत हॉस्टल बनवाया था उस वक्त बेगम नुसरत भुट्टो की, मगर ये मैं बताऊँ कि हमने तो जहाँ भी ख्वातीन के प्रोजेक्ट है पार्टियों से बालातर होके हमने सोचा तो उसको बनवाया। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर ये एनुअल प्रोग्राम में ये डाल देंगे तो हर ज़िले को एक ना एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और एक जितना 50 मिलियन रख लें, कुछ भी रख लें, तो तमाम ज़िला को सहूलत वैसे ही मिल जाएगी। तो बोलो आप अपना प्रोजेक्ट दे ना, हमने तो अपना दे दिया। हाँ, उनके ऊपर बहुत ओल्ड होम्स जो जी सर चैलेंज स्टार्ट हो गया। बहुत शुक्रिया, मेरी बात हो गई। हाँ सर, ये हमारा पाई चार्ट है। इस वक्त जो एडीपी है ये इनिशियली 1046 बिलियन का था, 946 का था, अब रिवाइज होके 1087 पे आ गया है। इसके अंदर सर आप देखें मेजर जो है 73% जो है वो सोशल सेक्टर का है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसमें जो वो 33% है। सॉरी सर, सोशल सेक्टर जो है वो 44% है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ये इसमें जो ये हिम्मत कार्ड और ये अपना घर अपनी छत पर, ये सारे प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल हैं? सारे शामिल हैं जी।
इस साइड राइट साइड पे सर अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट एसडीजीज प्रोग्राम है जिसके टोटल आउटले 84 बिलियन का है। इसके अंदर भी लोकल गवर्नमेंट्स को जो जा रहा है जो म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए वाटर सप्लाई सैनिटेशन वो 68 बिलियन है, जबकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोकल गवर्नमेंट्स के जो उधर से होना है एसडीजी से वो तकरीबन 14 बिलियन है और अर्बन डेवलपमेंट उसमें 1 बिलियन है। बाकी इसमें प्रोपोर्शनेटली कुछ इसमें रखे गए हैं पैसे। ये जो लोकल गवर्नमेंट जी सर ये उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। अभी लोकल गवर्नमेंट तो इन प्लेस है नहीं तो वो फिर फंड्स किसको उधर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। डेवलपमेंट इट्स अ डिपार्टमेंट जिसके तहत ये सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट उसके तहत निशान रफीक इसमें वो निशान वाला सुथरा पंजाब वाला जो है। अच्छा नहीं these will you're going to get for अच्छा इसीलिए आप ज़्यादा बोल रहे हैं। चलो हाँ ग्लास ट्रेन बन रही है आपकी, ये भूल ना जाएं आप ये जो वादा किया आपने। नहीं we just want security and safety when we travel on that train. That's our requirement. That's the और हमें कोई मसला नहीं। सर प्लीज हमान सर ये ओवरऑल हमारा जो डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो है उसका एक बाइफर्केशन है। रोड सेक्टर्स पर इसकी 328 बिलियन की एलोकेशन इस साल की सर इस साल ऑनगोइंग, और इसमें अब तक 177 बिलियन हम यूटिलाइज कर चुके हैं। 328 सर। इसी तरह सर लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 123 बिलियन की एलोकेशन थी, 79 यूटिलाइज हो गया हुआ है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 90 बिलियन था, उसमें 65 बिलियन का एक्सपेंडिचर हो चुका हुआ है। अर्बन डेवलपमेंट 75 बिलियन है, उसमें से 40 बिलियन एक्सपेंडिचर हो चुका हुआ है। नहीं सर नहीं, ये स्पेशलाइज्ड है। प्राइमरी का 69 है सर बिलियन एलोकेशन, और उसमें से भी 42 बिलियन एक्सपेंडिचर हो चुका हुआ है। एजुकेशन में सर अगर स्कूल एजुकेशन देखें तो 49 बिलियन की एलोकेशन है, 33 बिलियन यूटिलाइज हो गया है, और हायर एजुकेशन में 24 बिलियन की एलोकेशन है और उसमें 15 बिलियन यूटिलाइज हो गया। सर ये नॉर्मल होता है। मैं इसका थोड़ा सा आपके साथ एक ट्रेंड भी शेयर करूंगा, जैसे इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर हमारे चीफ क्वाड बता सकते हैं। हमारा 80 to 85% फंड यूटिलाइजेशन होती है नॉर्मली एडीपी की। मैक्सिमम कभी भी गया है तो वो 85% तक जाता है। अच्छा, ये जो हमारा मई और अप्रैल होता है प्रोक्योरमेंट्स इस दौर में मुकम्मल हो रही होती हैं, क्योंकि आप देखें सर एडीपी अप्रूव होती है जुलाई में, आपका बजट अप्रूव होगा जून में, उसकी आपकी जारी होगी एडवाइसेस वगैरह जुलाई में, जुलाई के बाद उसके PC1 बनते हैं, वो सितंबर अक्टूबर में PC1 कहीं जाके अप्रूव होते हैं, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ आता है, फिर उसके बाद प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इटसेल्फ 3 से 4 महीने का एक प्रोसेस है। तो नॉर्मली जो इसको मटीरियलाइज होती हैं चीज़ें सर, अगर आप सर 3 महीने पीछे जाएंगे तो ये शायद 40% पे था, अब ये कुछ 60% पे पहुंच गई यूटिलाइजेशन। चीफ साहब बात ये है, मैं थोड़ी सी गुजारिश करूं सर, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने कभी इतना परफॉर्म किया नहीं था, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम दिया गया है। जी ठीक। ट्रांसपोर्ट सर वो भी है, अगर आप कहेंगे तो वो सेपरेट हम आपको दे देंगे। सर मैं जो आपसे गुजारिश आपकी बात से करना चाह रहा था वो थोड़ा सा, सर ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो 40% है ये कोई बच्चे नहीं कर रहे, ये इनकी तीसरी जनरेशन है जो ठेकेदारी निज़ाम में है।
ये वेल प्लान एक डिज़ाइन है। मेरी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा तजर्बा है, ये जानबूझ के मई और जून के अंदर सारे का सारा इकट्ठा किए जाते हैं, ओवर पेमेंट्स होती हैं, और दैट इज़ वेयर द मिस यूज़ एंड द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज लाइज। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ गिव द रिकमेंडेशन टू द प्लानिंग। ये कौन सा इतना जो है, ये मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, मैं करना शुरू कर दूँ तो बात लंबी हो जाएगी। देर वॉज अ रिस्ट्रिक्शन वॉज लेड ऑन द INP डिपार्टमेंट की जो फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स होंगे, ये आप फ्लड आने से पहले 3 महीने नहीं करेंगे। जब तक ये हमारा कहीं कंट्रोल रहा, हमने इसको रोका। जो ही ख़त्म हुआ, वो अब सारे के सारे मंसूबे होते ही उस वक्त में जब फ्लड आ रहा होता है। और होता क्या है, वो 2-3 महीने में सारे पैसे 50 अरब खर्च हो जाता है। वो कहते हैं जी फ्लड आया था और उसके अंदर हमने प्रोटेक्टिव वर्क सारे कर दिए। सर ये रूटीन है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये इट इज़ नॉट आई थिंक इसको बस अब रैप अप भी करेंगे क्योंकि 2 बजे सेशन का टाइम भी है। कॉल नेक्स्ट करिए सर। ये अब मैं सर बहुत जल्दी क्लास शुरू हो गई थी। मैं सर अब वो SDGs के मेजर जो हमारे एरियाज़ हैं उसके हवाले से जो करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, स्मॉगलेस एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पंजाब के ऊपर सर आप एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के हमारा इको ऑप्टिमाइजेशन का प्रोग्राम है। इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव लैब्स इस्टेब्लिश की जा रही हैं, वाटर और उसके लिए स्मोक एमिशन की उसके लिए लैब्स की जा रही हैं, उसके स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, उसके लिए एक रिजीम डेवलप की गई है व्हीकल एमिशन टेस्टिंग के लिए। इसी तरह वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं, उसके लिए लैब स्टैब्लिश की गई हैं। फिर एनवायरमेंटल फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है सर, गवर्नेंस पे काम हो रहा है, प्लास्टिक फ्री पंजाब की एक पूरी पॉलिसी अनाउंस हुई है सर। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को रिवैम्प किया जा रहा है, कार्बन क्रेडिट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है। फिर क्लीन एनर्जी पे चीफ मिनिस्टर का रोशन घराना प्रोग्राम है, इसके ऊपर सोलराइजेशन पे काम हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है, चीफ मिनिस्टर्स फंड फॉर इंडिजिनाइजेशन ऑफ सोलर पैनल प्रोडक्शन है, इसके ऊपर सर एक फ़ंड कायम किया गया है। नेक्स्ट आइए। सोशल सेक्टर के ऊपर सर एजुकेशन में फर्स्ट टाइम अर्ली एजुकेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। सॉरी सर बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हमारे पास चीफ बैठे हुए हैं एनवायरनमेंट। जी सर, ऑन द लेफ्ट साइड सर। सर बिल्कुल जी, सीनियर मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है कि अक्रॉस दी डिपार्टमेंट्स जो भी, जिस तरह सर ने अभी गुजारिश की कि हमारा स्मॉगलेस रेजिलिएंट जो एक्शन प्लान है जो 2023 में सर इनेक्ट किया गया फर्स्ट टाइम एक्शन के हवाले से, क्योंकि पॉलिसी और पेपर वर्क तो मौजूद था, एक्शन लैग कर रहा था। तो उसमें सर जितने भी हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट हैं, जिस तरह सर ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, इंडस्ट्री है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इटसेल्फ है, तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेल्स बनाएं जिसमें वो मीडिया एडवोकेसी और इन सारी चीज़ों को कैटर फॉर करें। जी राइट सर। इस पे पूरे इनके रिफर्बिश हो रहे हैं, सेंटर्स बन रहे हैं, उसके ऊपर फिर मीडिया पे इंफॉर्मेशन और पब्लिक अवेयरनेस की पूरी कैंपेन की जाएगी। एजुकेशन में सर अर्ली एजुकेशन है, चीफ मिनिस्टर पंजाब स्कूल मील प्रोग्राम है, ये इसी तरह इम्प्रूविंग एक्सेस टू प्लास्टिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, स्कूल्स के जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवलप की जा रही है, अंडर ग्रेजुएट फॉरेन एंड लोकल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, CM पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ई लाइब्रेरीज है। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर सर गवर्नमेंट ने जो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, ह्यूमन डेवलपमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया है। पहले बहुत सारी जगहों पे ये स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ हो रही थी, अब इसको एक फोकस्ड अप्रोच के साथ किया जा रहा है। आप सर इसको अप्रिशिएट करेंगे कि किसी भी मुल्क के अंदर डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसके बगैर चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो या सोशल साइड पे हो, आपको उसके मैचिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना पड़ता है। ये जो सारे सोशल सेक्टर के काम है वो उस वाले डेवलपमेंट स्ट्रक्चर में आ रहे हैं? नहीं सर मैडम, वो अलग है, वो अलग है। ये उसमें क्या मतलब, व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट? इसमें मैडम जितने भी आपकी स्किल डेवलपमेंट है, मतलब टैफ्टा है, PITB है, आपकी PVTC है, ठीक है, ये सारे के सारे एक डिपार्टमेंट बना के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे आ रहे हैं। फिर चीफ मिनिस्टर एम्पावरिंग वुमेन थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये स्पेसिफिक टू विमेन है। फिर चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ट्रांसजेंडर्स है, ये भी हमारी एक निगलेक्टेड कम्युनिटी है, इंक्लूसिविटी में ये भी आ रहे हैं। फिर
ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया है, बहुत सारे पीआईटीबी ने किया, टेफटक शुरू कर रही है और भी इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। इससे पूरा हमारा एक जो आप कह रही थी अनडॉक्यूमेंटेड एक इकॉनमी हमारी एग्जिस्ट करती है, ये वो लोग हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट कई तरह से अवेल नहीं कर सकते, उनको एम्प्लॉयबल करके तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट। एक्चुअली आई वाजंट रिफरिंग टू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, मैं तो वो कर रही थी जो बेचारी अनएजुकेटेड है सारे, ये तो एजुकेटेड होंगे ना, क्योंकि इनकी स्किल्स डेवलप आप कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं आगे। फिर यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इंटर्नशिप स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं। हेल्थ केयर में अगर आप देखें तो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट है और रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। रीवैम्पिंग मैंने पहले बताया, 300 आरएससीज की रीवैम्पिंग और कोई 2500 बेसिक हेल्थ यूनिट्स की रीवैम्पिंग है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैथ लैब्स है, चीफ मिनिस्टर पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड फैमिली। ये आपके जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो आप कर रहे हैं ये सारे पाइपलाइन में थे, तो अब ये कोई ongoing है। ये ऑनगोइंग है सारे, ongoing है सारे, सारा इनका सारे मतलब वो ongoing। कंप्लीशन की तरफ अब जा रहे होंगे सारे। मैडम मैं बिल्कुल इम्पार्शल होके मैं एक सिविल सर्वेंट के तौर पे आपको कहूँगा कि इतनी कॉम्प्रीहेंसिव, आई हैव बीन सेक्रेटरी टू one of the departments also few months back, जितने इनिशिएटिव इस गवर्नमेंट में लिए गए हैं वो सारे एक फोकस्ड और बड़ी प्लान्ड एक्टिविटी के तौर पे चल रहे हैं, और आपके आई एश्योर यू कि अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका इकोनॉमिक अपलिफ्ट, सोशल अपलिफ्ट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आपकी सारी चीज़ें पैरेलल चलेंगी। और एसडीजीज़ की जो आपकी बेसिक 3 चीज़ें हैं, इंक्लूसिविटी, नोबडी इज़ लेफ्ट आउट एंड रीजनल इक्वलाइजेशन, ये सर सारी चीज़ें उसके ज़रिए अचीव हो सकती हैं। तो हम उस डायरेक्शन में, एक राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल उसके एनहांसमेंट के लिए क्या इसमें मैडम उसके अंदर 2 बेसिक इस वक्त जो स्कीमें चल रही हैं, बल्कि मैं इसको 3 कहूँगा। एक तो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को हम डेवलप कर रहे हैं, और उसमें हमारा पंजाब के अंदर वो भी जोन है जो कि एसईज़ीज़ अथॉरिटीज़ के अंदर बन रहे हैं। नंबर 2 के ऊपर हमारे 2 प्रोग्राम हैं जिसके अंदर फाइनेंसिंग कर रहे हैं हम लोगों को। आप अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आप समझें तो इसके अंदर एसएमईज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हमेशा इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको पुल करता है, वो प्रमोट करता है, लेकिन अगर उसके पैरेलल जैसे आप कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए नीचे आपको एसएमईज़ को ग्रो करना पड़ता है। एसएमईज़ के 2 इशूज़ होते हैं, एक उनके पास कैपिटल का इशू होता है, एक उनके पास टेक्नोलॉजी का इशू होता है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रिलेटेड टू कैपिटल। अगर उनके पास एक कैपिटल अवेलेबल हो जाए तो दे कुड इम्प्रूव देयर टेक्नोलॉजी, दे कैन एक्सपैंड द बिजनेस एंड दे कैन कंट्रीब्यूट टू दी लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो। स्मॉल एंड मीडियम लोन्स जो आप दे रहे हैं इन बिजनेसेस के लिए। मैडम इसके ऊपर 10 बिलियन का एक प्रोग्राम है, और एक और इसके ऊपर उसका नाम है स्मार्ट, उसका मेरे जहन से इस वक्त नाम निकल गया। 2 कार्ड की स्कीम्स हैं जिसको अब 100 बिलियन पे चीफ मिनिस्टर साहिबा लेके जाना चाह रही हैं, ताकि ये जो इंडस्ट्री के अंदर आपका एक गैप था उसको फिल किया जाए, और आपकी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसका जो नीचे से उसकी इंडस्ट्री ने ग्रो करके ऊपर जाना है उसको भी उसको किया जाए। तो ये स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। सोशल प्रोटेक्शन देखें अगर आप तो इसके अंदर पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। पूरे पंजाब की हम डेटाबेस अपनी पंजाब बना रहे हैं, और उसके अंदर स्कोरिंग मेथोडोलॉजी भी हम खुद अपनी डेवलप करके, तो जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ है उनके लिए फिर सोशल प्रोटेक्शन के लिए। इसमें आपके सर्वे के हवाले से, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट दिस और इसको भी आप एसडीजीज से लिंक कर रहे हैं कि डेफिनेटली ये बहुत अच्छा काम है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये इस वक्त इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन इसका जो मैकेनिज़्म आप लोग इस वक्त लाइक ह्यूमन रिसोर्स जो एंगेज कर रहे हैं और उनको घर घर भेजने की बात कर रहे हैं, टेलीविजन पे भी ऐड चला रहे हैं, लेकिन इन माय डिस्ट्रिक्ट या तो वो अब वहाँ पे शुरू नहीं हुआ, अगर शुरू हो गया तो अब टिल डेट आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पर कोई दरवाजे तक किसी के पहुँचे। दफ्तरों में ज़रूर बैठे हैं, इसी साहिबा के ऑफिस में वहाँ पे बैठ के, या सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के दफ्तर में बैठ के। कौन से वो डिस्ट्रिक्ट हैं? ठीक हो गया। और ये कब तक पूरे पंजाब में आप इसको ले उन्होंने ग्राउंड पे जाना, जैसे सेंसस होता है, सेंसस के तर्ज पे ही होगा।
नेक्स्ट चलिए सर। इस तरह सर एग्रीकल्चर सेक्टर में और लाइफ स्टॉक में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स है, फिर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम है, सीएम इनिशिएटिव फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट वेस्ट लैंड है, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के ऊपर किसान कार्ड है, लाइफ स्टॉक कार्ड है, चीफ मिनिस्टर फंड फॉर ई मैकेनाइजेशन है, फिर मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स हैं। ये वो इनिशिएटिव्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ फिशरीज़ में आज तक कोई बहुत काम नहीं हुआ था, अब इसके ऊपर भी बड़ी फोकस्ड अप्रोच के साथ काम हो रहा है। पंजाब वाइल्ड लाइफ सेंसस हो रहा है, फिर इसमें एक्वाकल्चर श्रिम्प फार्मिंग के ऊपर काम हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैचरी फैसिलिटीज़ फॉर पेंगेसिस और अदर हाई वैल्यू फ़िश हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। मॉडल फ़िश मार्केट लाहौर में, एफएमडी फ्री जोन जो हमारा एक लाइफ स्टॉक का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है उसके ऊपर काम हो रहा है, जिससे लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। एनिमल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिससे आपकी एक्सपोर्टेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी एनिमल की। फिर मल्टी क्रॉपिंग फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। आगे चलिए। सर्विसेज सेक्टर में हम देखें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के हवाले से चीफ मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड पे काम हो रहा है। ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गारमेंट सिटीज़, ये शेखुपुरा में एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया है, उसके ऊपर ऑफ़र कर रहे हैं। वो गारमेंट्स के लिए पूरी मशीनरी, वो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो जस्ट एक अपनी मशीनरी और मैन पावर लेके आएंगे और एक्सपोर्टेबल हमारे पास वो फैसिलिटी अवेलेबल होगी। चीफ मिनिस्टर फंड फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी हार्डवेयर प्रोडक्शन है, ये एक फ़ंड क्रिएट किया गया है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो रेस्टोरेशन और रिहैबिलिटेशन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। लाहौर मरी डेवलपमेंट के बहुत मेजर प्रोग्राम शुरू हुए हैं। स्मार्ट एंड सेफ सिटीज़, पूरे पंजाब के सर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में सेफ सिटीज़ अब एक्सपैंड हो रहे हैं। टूरिज़म और कल्चर के हवाले से देखें तो करतारपुर कॉरिडोर डेवलप हुआ है, सीएम पंजाब फिल्म फंड इस्टेब्लिश किया गया है। खेलता पंजाब प्रोग्राम में पूरे पंजाब की हेल्थ जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है उसकी अपग्रेडेशन हो रही है, बड़ा मैसिव काम हो रहा है इस एरिए में। प्रोग्राम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, मास्टर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इको टूरिज़म है, इसके ऊपर काम हो रहा है। पंजाब में सर मैस ट्रांजिट के जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उसके लिए स्टडीज़ हो रही हैं और उस स्टडीज़ के साथ साथ मैस ट्रांजिट के ऊपर T30 का एक पूरा प्रोग्राम सीएम साहबा ने अप्रूव कर दिया हुआ है। आगे चलिए। अब अगर हम SDGs का वे फॉरवर्ड देखें तो इसके अंदर तीन चीज़ें हमें सर ज़हन में रखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि SDGs की हमारी ग्रोथ के साथ, डेवलपमेंट के साथ इसको हमें लिंक करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी भी लिंक्ड है लेकिन इसको हमें बहुत प्रिसाइजली डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके इसको लिंक करेंगे ताकि जहाँ पे भी अगर हमें कोई गैप नज़र आता है उस गैप को, ये तो सर एक बेसिकली डेटा है, इट्स नॉट अ पॉलिसी। पॉलिसी इसमें से जनरेट होगी जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, आप फिर उसके ऊपर अपना फर्म अप करेंगे ओपिनियन। जैसे यहाँ जितने क्वेश्चन हुए वो बेसिकली पॉलिसी रिलेटेड थे कि अगर हमें ये काम करें तो ये चीज़ हो सकती है, इस तरह किया जाए तो इसको इस तरह ठीक किया जा सकता है। गैप्स आपने आइडेंटिफाई किए, ये गैप्स हमें फिल करने की ज़रूरत है। क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, डेटा को अगर हमें कहीं पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी हमें करना चाहिए। फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट है, हमें इसके लिए हमारा जो बेसिक चैलेंज है वो फाइनेंस है हमारा। हमें डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिंग के अदर एवेन्यूज़ भी तलाश करने चाहिए। इसके ऊपर दुनिया भर में अब क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी आ गई है, आपकी SDG फोकस्ड हमें फाइनेंसिंग के ऊपर ये जाना चाहिए, तो इससे हम अपने SDGs के इंडिकेटर्स को बेहतर कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट है सर, हमने एक शुरू किया हुआ है, हमने सर एक शुरू किया है, फर्स्ट टाइम हमारा हुआ है लेकिन अभी तक थ्रू नहीं हो सका, तो हम उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक हमारी ये एफर्ट्स को रिकग्नाइज करता है, उसने हमारे बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है जिसको हम DLI बेस्ड कहते हैं, लोनिंग की है या फंडिंग की है, वो हमारे इनिशिएटिव्स के साथ कनेक्ट किया है। मसलन हमारी कार्बन एमिशन कंट्रोल थ्रू व्हीकल्स, ई-व्हीकल्स, हमारी सर 1600 बसें आ रही हैं पंजाब के लिए, इलेक्ट्रिक बसेस, पूरे पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका
सर एग्जैक्टली इससे पैसर और पीसीपी दोनों इसी पे फोकस्ड हैं, इसी पे फोकस्ड हैं। फाइनेंसिंग की बात करें आप और एग्जिस्टिंग फाइनेंसर आप पूरे खर्च नहीं कर सकते, बजट में आपने 20% वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। फिर आपने कहा अमेजिंग काम हुआ फिशरीज पे और ये पॉइंट तो आप लोग आपके डिपार्टमेंट्स आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द फंड, आप कैसे वो नंबर सर ये आप बाहर से पैसे कैसे ला सकेंगे, नॉट यूटिलाइजिंग योर ओन फंड। सर कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक टू सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कार्बन क्रेडिट है वो किसी और जगह पे नहीं जाना, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही है आपका। तो मेरी उसमें, लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि जी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो यूटिलाइज नहीं कर सके। ये सर वो थे जिन्होंने कभी यूटिलाइज किया ही नहीं था। आज आप देखें कि उनको इनकी तो कभी सर 500 मिलियन की स्कीम्स नहीं आई थी, अब ये 2 बिलियन 3 बिलियन पे कम से कम पहुँचे हुए यूटिलाइजेशन पे। तो ये हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, ऊपर 50% यूटिलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट की बात करें, वी हैव 10% यूटिलाइजेशन, हायर एजुकेशन इज 50% यूटिलाइजेशन, but anyway there is always room for improvement। सर फिर सर सोशल प्रोटेक्शन और इनोवेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। उसके अंदर PSER है, विमेन डेवलपमेंट के लिए है, ट्रांसजेंडर्स के लिए, डिसेबिलिटी को हमें उसमें फैक्टर इन करने की ज़रूरत है ताकि तमाम हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ उसके अंदर इंक्लूड हो सकें। दिस इज़ सर ऑल फ्रॉम माई साइड सर। अब हम सर क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी हैं, पूरी मेरी टीम बैठी हुई है सर। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में ये तो आपकी प्रेजेंटेशन के साथ साथ Q&A तो चलता ही रहा है, तो अगर उसके अलावा भी मेंबर्स के पास कोई सवालात हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं तो ऑब्वियसली द टीम इज़ हेयर, लेकिन वी आर वेरी सर ग्रेटफुल आप लोग के यहाँ पे आना और आप लोगों की एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रेजेंटेशन आप लोगों ने दी है। ऑब्वियसली जो हमने आपसे सवालात किए हैं वो आप लोग उन्होंने कुछ आंसर्स यू वर एबल टू गिव द आंसर्स, लेकिन जो आप लोग नहीं भी आंसर्स या वो उस तरह हमारे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से नहीं हुए, तो मेरे ख्याल में जब हम ये डिपार्टमेंट फोकस्ड करेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा जो मेंबर्स के जो कंसर्न्स हैं वो ज़्यादा एड्रेस हो जाएंगे उसमें। लेकिन ओवरऑल सर थैंक यू सो मच फॉर सर इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करूँगा आपसे सर, आप बेसिकली पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है, लीगल एंड पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है। ये सर आपको एक पिक्चर रखी है हमने, इसका एनालिसिस करके आप हमें पॉलिसी डिपार्टमेंट्स के लिए स्पेसिफिक हो सकती है, एरिया स्पेसिफिक हो सकती है, रीजन स्पेसिफिक हो सकती है। आपके जो कंसर्न्स हैं वो बेसिक फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, वो हमें पॉलिसी के ज़रिए एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेजिस्लेशन के ज़रिए एड्रेस करने की ज़रूरत है सर। सारे क्लेम करते हैं, ये जो यहाँ से इशरत आप भी इसमें मेल आउट करेंगी, बिकॉज ये भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिक्स करती भी है, करती भी रहेगी। सर आप जब पॉलिसी बनाते हैं ना राजनपुर और मरी के लिए कभी एक चीज़ नहीं कर सकते, मतलब आज 350 करोड़ रुपया नहीं 350 मिलियन आप देने लगे हैं फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कमिंग ADP। व्हाट आई फील, आपने मरी में एक 400 बेडेड हॉस्पिटल ऐड किया, 360 बेडेड, वेरी गुड। आपने वहाँ के THQ को इम्प्रूव किया, वेरी गुड। आपने एक और हॉस्पिटल वहाँ पे लिखी गई, एक्सीलेंट। लेकिन उसके जो सब एरियाज और उस एरिया और कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं उस पर फोकस नहीं है। आज सीनियर मिनिस्टर मरी से है तो वहाँ पे एनवायरमेंट का फोकस है, वहाँ पे एजुकेशन का फोकस है, वहाँ पे हेल्थ का फोकस है। पॉलिसी मेकिंग आप लोगों के हाथ में होती है। जो आपने BHU जो इसका क्रेडिट करते हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे इतने डिसक्रेडिट में है। आई डोंट नो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इसका डिसक्रेडिट है। मिसाल के तौर पे आपने उनको लाहौर बैठ के एक स्कीम बना दी, आपने कहा जनाब ये इसकी सीलिंग चेंज करनी है, लाइटें चेंज करनी है, टाइल चेंज करनी है, मेरी को बहुत अच्छी लगी है। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमारा बेड ऐड हो जाए, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया जाए, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि आप उसको मेडिसिन को बढ़ा दें जो वहाँ के लोकल हैबिटेंट्स हैं। लेकिन लाहौर में पॉलिसी बनी, इसको भी मैं समझता हूँ डिसेंट्रलाइज कीजिए और अपने पॉलिटिकल टीम जब भी जो गवर्नमेंट हो उनको ऑन बोर्ड रखिए। जो प्रॉब्लम मुझे मरी का पता है, मुझे DG खान का नहीं पता, और जो DG खान का इनको पता है वो
मुझे नहीं उस तरह से इन पिक्चर। हमें बिल्कुल जब सब चीज़ें फाइनलाइज हो के सामने और बात करें तो लोग समझते हैं कि हम शायद कोई इख्तलाफ रख रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से, ये नहीं है। लेकिन किसी जगह पर आप लोग भी जब बात करते हैं तो इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। ये इंतहाई नेगेटिव वेव है जो हमारी हेल्थ के हवाले से एक ड्राइव चली है जिस पे हमने बहुत पैसा खर्च किया। जस्ट हेल्थ पे कमेंट सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की डिमांड अलग है, वहाँ के एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ हो सकता वी कैन डिवाइड देम रीजनल वाइज, रीजन मतलब रीजन वाइज डिवाइड कर लें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें माजरत करूँ ना, मैं उठना मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। रीजनल वाइज भी कर लें तब भी सर ये मेरे पास डेटा मौजूद है एंड यू नो मैं बगैर डेटा के बात नहीं करता हूँ। इम्प्रेशन है ये, मैं अगेन क्वालिफाई नहीं करूँगा कि मोस्टली वो BHU और RHCs वो जो हैं वो किए जा रहे हैं जिनको आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर आपने डोल आउट करना है, प्राइवेटाइज करना है। अगर ये मेरे पास लिस्ट मौजूद है सर, यू कैन नॉट कंटेस्ट इट। जब तक मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ से डेटा नहीं लिया कि फेज़ 1 और 2 में कौन से आप कर रहे हैं और एक्सियन बिल्डिंग से इन राइटिंग नहीं लिया कि आपने कितने पैसे एक एक पे कर रहे हैं, इसमें से 90% आप सर डोल आउट कर रहे हैं, व्हाट शुड आई मेक आउट ऑफ इट? मैं इसका क्या सर, मैं इसका क्या दूं? मैं तो इसका मैं तो यही कहूँगा कि आपने फेवर करनी है बगड़ मुश्ताक को, तो आपने कहा इस पे 5 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए लगा के इसकी हैंड ओवर कर दो। मैं क्या जवाब दूं इसका? सर ये ठीक है, इस वक्त हम फेजेस में BHUs को रिवैम्प कर रहे हैं, RHCs को रिवैम्प कर रहे हैं, लेकिन ये होने सारे ही रिवैम्प हैं। इस वक्त फेज़ 1 और फेज़ 2 हमारे चल रहे हैं, अभी जो नेक्स्ट ADPR है उसमें जो रिमेनिंग रह गए वो सब भी मैं नहीं, आई एम नॉट आस्किंग दिस। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मेंटेन एक चीज़ को नहीं कर रहे, यू आर आउटसोर्सिंग इट परफेक्टली ऑल राइट, बट आप उसके ऊपर सारा पैसा खर्च वो कर रहे हैं जिसकी इन्होंने एलेबोरेट की है। मैं जब टाइलें देखी हैं जलालपुर RHC में, आप यकीन करें आधा महल उसने कहा ये टाइलें लगी थी, पिछले साल भी लगी हैं 2 साल। वो जो सलमान साहब जब खड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं हमने ये भी रिवैम्प किया, ये भी। आपने सबको तबाह बर्बाद कर दिया है। इतना कवर्ड एरिया नहीं है। मैं तो टर्म्स बात करूंगा रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक। अगर फॉर एग्जांपल 1200 एक एरिया है जिसका टोटल कवर्ड एरिया है, आप उसके ऊपर 5 करोड़ खर्च करें तो मुझे बताएं नई कंस्ट्रक्शन की कास्ट क्या आती है? हैव यू एनी आइडिया? देखिए इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये अगर बेवकूफ़ी नहीं है तो इट इज़ अ sheer negligence and wastage of the public fund. This is what I am realizing it. Thank you. सर ये चीज़ों पे पॉइंट आउट हुआ था जो आप भी चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक चीज़ ज़रा एक टाइट भी करेक्शन उस पर नहीं हुई। The things are going in the same way. दूसरी बात, छोटी सी बात करूंगा। आप काइंडली पॉलिसी डिसीजन के ऊपर हैं, आप रूलिंग एलीट बैठे हुए हैं। मिनिस्ट्री के पास ये डेलीगेटेड जो हो जानी है, जो लेजिस्लेशन होती है, आपके पास रह क्या जाना है? मुझे पहले तो ये कोई बता देना। यहाँ पे सब विजिट बैठे हुए बात करें तो गुस्सा हो जाते हैं। कितनी अथॉरिटीज़ आपने बना दी हैं? आपके पास तो मिनिस्ट्री की अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं, अथॉरिटीज़ की अकाउंटेबिलिटीज़ क्या होगी? अथॉरिटी आफ्टर अथॉरिटी, अथॉरिटी आफ्टर अथॉरिटी, अथॉरिटी आफ्टर अथॉरिटी। ग्रेड 19, 20, 21, 22, 24 अफसर बैठे होंगे। आप जाके जनाब वो आपको कहेगा मैंने आपसे बात ही नहीं करता। कौन सी किस किस्म की डेमोक्रेसी एंड ओवरसाइट की हम बात कर रहे हैं? तीसरी बात मैं आपको बताऊं, आप सारे की सारी अथॉरिटी अगले गवर्नमेंट के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप DC को दे रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। ये जो गांठें आज आप लगा रहे हैं ना बैठे हुए गवर्नमेंट में, इसको ना करें। जब से वो करा तो DC तो बेचारे बस स्वाद डालने के कुछ रहा ही नहीं। आप चेक कर लें, मैं सही कह रही हूँ। जब से उपरा कुछ भी नहीं रहा। मैं सही कह रही हूँ। वो रोते पीटे। अभी तो लोकल गवर्नमेंट का। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन।